We are the company those who are taking our authors from 0 to 1. हमारे पास में 30 से ज़्यादा पब्लिकेशन हाउसेज ऑनबोर्डेड है, 10 से ज़्यादा लिटरेरी एजेंसीज ऑनबोर्डेड है, 1000-2000 से ज़्यादा ऑथर्स ऑनबोर्डेड हैं, जो कि अब डे बाय डे ये नंबर बढ़ता जा रहा है। 50 लोगों के साथ में स्क्रीन प्ले शेयर किया था, तो 50 में से आप समझिए करीब 15-20 लोगों ने स्क्रीन प्ले बना दिया। तो हमको वो देख के बड़ी खुशी होती है कि यार एक ऑथर जिसको न पिच डेक पता था आज से 15 दिन पहले, उसको पिच डेक भी बनाना आ गया, उसको स्क्रीन प्ले भी बनाना आ गया। तो वो ऑथर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। पोइट्री हमारा जो है ना वो हमारा एक्सपर्टीज़ है एक तरीके से। 20,000 गज़लें हम लोग पब्लिश कर चुके हैं अभी तक। ये मैं सिर्फ गज़लों की बात कर रहा हूँ, इसमें अभी मैं कविताओं की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में हम लोग जा रहे हैं। चिकन एग सिचुएशन काफ़ी सारी ज़्यादा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, कि पहले एक्टर आएगा, कि पहले डायरेक्टर आएगा, कि पहले प्रोडक्शन हाउस आएगा, कि पहले कास्टिंग एजेंसी आ जाएगी, कि स्क्रीन प्ले पहले होगा, क्या होगा। तो वो गोल गोल घूमता रहता है। बुक अडेप्टेशन इस समय बूम पे है। और वो भी क्योंकि हम लोगों को तो आदत है ना हॉलीवुड से इन्फ्लुएंस होने की, हर जगह है ना। शार्क टैंक भी तो पहले शार्क टैंक वहाँ आया, उसके बाद हमारे यहाँ आया। पहले कौन बने करोड़पति वहाँ आया, फिर हमारे यहाँ आया। तो अब वो बुक अडेप्टेशन चल रहा है। अभी मणिरत्नम साहब का वो स्टेटमेंट आया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर डोमेन की कहानियाँ के ऊपर फिल्म बननी चाहिए। मणिरत्नम साहब का स्टेटमेंट है, यही हमारा वैलिडेशन है हमारे स्टार्टअप का कि मणिरत्नम साहब ने ऐसा बोल दिया। Hi, this is Indranil and you are watching the Spotlight Beyond Profession. Today in our channel, we are having a podcast with Mr. Parag Agarwal. Parag Agarwal is the name behind the concept booktainment. Now, what is this booktainment and what is the concept of booktainment? We try to understand in this entire podcast. So please watch the podcast till the end so that you can have the update and you can have all the insight about this concept of booktainment. Before watching the entire podcast, I would like to request you to subscribe the channel so that you can have a lot of updates from our end. And also subscribe our business news channel by the name of the Spotlight News, where we publish business bites Monday to Friday at 7 p.m. and also business news of the day Monday to Friday at 9 p.m. So please watch this entire podcast with Mr. Parag Agarwal, the co-founder and CEO of Booktainment. So first of all, thank you very much for giving us your time and thank you very much for joining our show. The channel is The Spotlight Beyond Profession. So obviously you are under the spotlight today and we name it Beyond Profession because in this entire podcast, we will try to understand more about your other journey rather than your professional aspect. Because professional aspect के वजह से maybe multiple people must be knowing you. बट आपकी जो पर्सनल जर्नी है उसके वजह से लोग आपको ज़्यादा इज्जत देना शुरू कर देंगे बिकॉज वो जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. करेक्ट. Before I deep dive into this podcast, I have two disclaimers. First disclaimer is that my name is Indranil, so I'm a Bengali. So whenever I will try speak in Hindi, you can laugh at me. I don't mind. I'm quite a bit habitual on this. Absolutely not, sir. And secondly, in this entire podcast, if you don't want to answer any of my question, you can directly say no. There is nothing like you need to avoid anything. Because हमारे जो podcast होते हैं, it is completely uncensored, unfiltered and unscripted. So now, when I am entering into this podcast, first of all, just let me know and let us know that what is the concept of this booktainment. Because नाम बहुत मुझे अच्छा लगा, नाम बहुत कैची है, बहुत entertaining नाम है. What is the concept behind it? ये थोड़ा सा बता दें so that our viewer can understand what is the concept is all about. Sure. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंद्रनील साहब कि आपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया मुझे और बुकटेनमेंट को आपके ज़रिए अब व्यूअर्स तक, ऑथर्स तक और एंटरटेनमेंट डोमेन तक जाने का मौका मिलेगा. तो इट्स माय प्लेजर दैट आई एम इनटू स्पॉटलाइट टुडे. और बुकटेनमेंट का सर जैसा आपने सवाल किया कि बुकटेनमेंट का नाम कहाँ से आया और बुकटेनमेंट कैसे शुरू हुआ करके, तो बेसिकली पब्लिशिंग का हमारा बैकग्राउंड है और बाय क्वालिफिकेशन तो मैं लैंडस्केप आर्किटेक्ट हूँ. और 2016 तक मैंने जो है काम किया हुआ है लैंडस्केप आर्किटेक्चर में. बट उसके बाद हमने पब्लिकेशन में 8-9 साल काम किया और वो पब्लिकेशन का CEO अलग है और पब्लिकेशन की पूरी टीम अलग है अब हमारी. तो हम लोग एक ऑथर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो कंटेंट है, लिटरेचर डोमेन के ऑथर्स की मैं बात कर रहा हूँ. जो नॉवेल राइटर्स हैं, स्टोरी कलेक्शन लिखते हैं, पोइट्री कलेक्शन लिखते हैं, ऑथर्स और पोइट्स की बात कर रहा हूँ मैं.
सो उनका जो कंटेंट है वो एंटरटेनमेंट डोमेन तक कैसे जाए, उसके लिए हम लोग वी आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द लिटरेचर एंड एंटरटेनमेंट डोमेन्स। सो उसके लिए हम लोग हैंड होल्डिंग कर रहे हैं ऑथर्स की, उसके लिए हम लोग ऑथर्स को गाइड कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पिच बाइबल क्या होता है, स्क्रीन प्ले क्या होता है, बाउंड स्क्रिप्ट क्या होती है। सो वो बुकटेनमेंट का नाम यहीं से आया कि बुक तो एक लिटरेचर डोमेन का शब्द हमने ले लिया और एंटरटेनमेंट डोमेन का हमने टेनमेंट शब्द ले लिया, तो वो वहाँ से बुकटेनमेंट एक हमारा डोमेन बन गया। ओके। और हम लोग जी सो किस टाइप के ऑथर्स मेजरली आप लोग टैप करते हैं, यानी किस टाइप के ऑथर के लिए आप लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, बेसिकली हम लोग सर जो ऑथर्स हैं हमारे साथ में, वो वैसे तो सभी के लिए ओपन है, लेकिन ऐसे ऑथर्स जिनको बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट डोमेन की अवेयरनेस नहीं है, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लॉगलाइन क्या होती है, सिनॉप्सिस क्या होता है, एपिसोडिक ओवरव्यू क्या होता है, डायरेक्टर्स नोट क्या होता है, वर्ल्ड क्या होता है, एक पिच बाइबल क्या होता है, स्क्रीन प्ले क्या होता है, मतलब एक बेसिक्स भी जिनको नहीं पता है, उनके लिए भी हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं। उनको बताते हैं कि जैसे अगर कोई बोलता है कि हम, जैसे हमारे पोर्टल के ऊपर अभी हमारा ऐप आने वाला है, दिसंबर में ऐप आ जाएगा, तो पोर्टल के ऊपर हम लोग पिच बाइबल फॉर्म में कंटेंट को वो करते हैं, प्रोक्योर करते हैं और शोकेस करते हैं बेसिकली, सो दैट के बायर्स जो हमारे ऑनबोर्डेड बायर्स हैं वो आकर के वहाँ पर कंटेंट का पिच बाइबल के फॉर्म में देख सकें। तो जनरली ऑथर्स को ये नहीं पता होता है कि पिच बाइबल क्या है, तो हम उनको शेयर करते हैं सैम्पल पिच बाइबल के, सर पिच बाइबल देखिए ऐसी होती है, आप ऐसी पिच बाइबल बना के हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दीजिए। फिर जब वो बना लेते हैं that they can make free of cost. हाँ, दैट दे कैन मेक फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उनको सैंपल प्रोवाइड करते हैं और वो कुछ लोग बना के दे देते हैं, कुछ लोग नहीं बना के दे पाते। कुछ लोग जो बना के दे देते हैं उनको हम अपनी टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करवाते हैं और वो ईमानदारी से रिव्यू होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें हम कुछ भी आपने अच्छा बनाया तो भी हम बोल देंगे कि यार ये तो ख़राब है, लाओ हमको पैसे दो, हम इसको नया बना के देंगे, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि इसमें आप पोएट्री को भी इन्वॉल्व करते हैं, हाँ, तो इस एंटरटेनमेंट में पोएट्री का क्या काम है? क्या वो म्यूजिक वीडियो के लिए पोएट्री? म्यूजिक वीडियो के लिए है, जैसे फिल्मों में गाने होते हैं, ओके, है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक में कई बार बहुत सूफिस्टिक या उस तरह का भी म्यूजिक आ जाता है, लिरिक्स आ जाते हैं, तो वहां से हमारे पोएट्री के लोगों को भी मिलता है। यू हैव both the content directors who are making feature films kind of thing or feature series kind of thing, as well as the song creator, song production houses or song producers, yes basically हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। तो बुकटेनमेंट जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो हम लोग प्रोज के लिए काम अभी कर ही रहे हैं। उसके अंडर में एक सेगमेंट होगा द्रुत के नाम से। वो द्रुत अभी हमारा फोकस एरिया नहीं है। वो द्रुत हम लोग करेंगे 2026 में शुरू, अभी नहीं करेंगे, पोएट्स के ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग क्योंकि फिल्म्स वगैरह बना रहे हैं, अपने मतलब पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो अभी वहाँ फोकस करेंगे। जब एक बार थोड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट यहाँ कंटेंट बेस पे हो जाएगा, उसके बाद फिर हम, चूंकि पोएट्स को लाना वो हमारे हाथ की चीज़ है, पोएट्री हमारा जो है ना वो हमारा एक्सपर्टीज है एक तरीके से। 20,000 गज़लें हम लोग पब्लिश कर चुके हैं अभी तक, 1 लाख से ज़्यादा शेयर पब्लिश कर चुके हैं हम लोग अभी तक। ये मैं सिर्फ गज़लों की बात कर रहा हूँ, इसमें अभी मैं कविताओं की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सो वो तो हमारा कोर है, वो तो हम लोग अंदर से ही शायर हैं, तो वो हमारे हाथ की चीज़ है, उसको हम जब चाहेंगे तब कर लेंगे। ओके, सो नाउ किस टाइप के कंटेंट के ऊपर आप लोगों का फोकस है? बिकॉज आज की तारीख में अगर मैं रिसेंट टाइम की अगर बात करूँ तो आफ्टर दिस कोविड पीरियड, जो फीचर फिल्म का जो डायनामिक्स है वो बहुत बदल गया है। एक हवा आया था जब कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स काम कर रहा था। नाउ कंटेंट ड्रिवन जो फिल्म है उनको थिएटर में पब्लिक नहीं मिलते हैं, एंड थिएटर्स आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इन गेटिंग द फुटफॉल। सो कंटेंट ड्रिवन चीजें जो है वो ओटीटी में ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गया है, एंड मूवी एंड द मल्टीप्लेक्सेस और सिनेप्लेक्सेस दे आर सर्वाइविंग मेजरली ऑन लार्जर देन लाइफ वाली जो पिक्चर्स हैं उन्हीं के थ्रू। सो व्हाट इज योर फोकस एरिया इन क्रिएटिंग कंटेंट और मेकिंग दोज authors get their work done? Our focus area is basically the content that is coming up on the platforms like Amazon Mini. MX Player को परचेज कर ही लिया Amazon ने खरीद लिया उसको। तो Amazon Mini पे जैसा कंटेंट आ रहा है, MX Player के ऊपर जैसा कंटेंट आ रहा है, और आपका हॉटस्टार का जो क्विक्स सेगमेंट है, तो which are majorly the free concept as of now. मेजरली जो फ्री कॉन्सेप्ट है एज ऑफ नाउ, उसी के ऊपर हमारा फोकस है। 1 घंटे का कंटेंट
जेनजी भी हो सकता है, वो जो है आपका मर्डर मिस्ट्री भी हो सकता है, क्राइम थ्रिलर भी हो सकता है, सस्पेंस भी हो सकता है, रोमांस भी हो सकता है, आपका जेनजी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जॉनरा इज नॉट द बार, बट द मेजरली द content of 1 hour to 1.5 hour, and in the form of mini series or film and OTT platform, not the big screen larger than life, Cineplex, multiplex. We are not focusing on that. Okay. As So of now. either it can be 1 hour or 1.5 hour content. Yeah. That can be split it into series. Yes. Or it can be on one shot. Yes. Can be worked as a Yes. feature film. Yes. And will be published on this OTT free platforms. OTT platform. Free OTT platform. Free OTT platform. Majorly. Yes. Yes. Okay. So now my point is Right. कि if any author comes to join you or comes to be on board in Right. your platform, Right. what is the criteria and how they will understand and know who you are and how you will be beneficial for the authors to get their content featuring in some platform. Right. So what happens is that we are working in the literature domain from last 8 years, Okay. and in the whole literature community, people know us. Whether it is from any of the publication house, that is not a problem. So उसमें ये है कि लोग भी, मतलब ऑथर्स भी हमको जानते हैं, हम भी ऑथर्स को जानते हैं, तो एक नाम जो है वो पहुंचा हुआ है। इसीलिए हमने इसको शुरू किया कि हमारा नाम लोगों तक ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, तो एक ट्रस्ट इश्यूज होते हैं जो ऑथर्स को, वो ट्रस्ट इश्यूज ना हो, तो वो हमको फेस नहीं करना पड़ रही है वो प्रॉब्लम, क्योंकि पब्लिकेशन हमारे पास में 30 से ज़्यादा पब्लिकेशन हाउसेज ऑनबोर्डेड है, 10 से ज़्यादा लिटरेरी एजेंसीज ऑनबोर्डेड है, 1000-2000 से ज़्यादा ऑथर्स ऑनबोर्डेड हैं, जो कि अब डे बाय डे ये नंबर बढ़ता जा रहा है। हम लोग मेरे ख्याल से मार्च तक 5000 ऑथर्स तक पहुंच जाएंगे। सो वो ऑथर्स तक ऑलरेडी नाम पहुंच रहा है हमारा, क्योंकि जैसे एड्स वगैरह भी चला रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिससे कि लोगों तक अवेयरनेस आए और पहुंचे नाम, तो वो प्रॉपरली हो रहा है, उसमें कोई इशू नहीं। कैसे ऑनबोर्ड होंगे, प्रोसेस क्या रहे? ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है। साइन अप है, DIY मॉडल है, साइन अप है। हमारा जो वेबसाइट का पेज खुलता है, अभी दिसंबर में ऐप आ जाएगा तो और इजी हो जाएगा। गूगल प्ले से डाउनलोड करिए, उसमें आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालिए, नॉर्मल जो जैसा साइन अप होता है। उसके बाद में फिर आपको एक प्रोजेक्ट ऐड करना होता है, तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट ऐड करेंगे तो उसमें वो आपसे नाम पूछ लेगा किताब का, लॉगलाइन डाल दीजिए, सिनॉप्सिस डाल दीजिए, एपिसोडिक ओवरव्यू डाल दीजिए, कैरेक्टर आर्क्स डाल दीजिए, नोट फॉर द डायरेक्टर डाल दीजिए, साउंड डाल दीजिए, विजन डाल दीजिए, सब चीज़ें डाल दीजिए, तो पिच बाइबल आपकी तैयार हो गई। अगर आपको पिच बाइबल बनाने नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको पिच बाइबल बनानी नहीं आती तो हम आपसे सैंपल शेयर कर देंगे, आपको मेल पे या व्हाट्सएप पे सैंपल भेज देंगे PDF में के फॉर्मेट में कि ये पिच बाइबल होती है, आप बना करके डालिए। अगर नहीं बना के डाल पाते हैं तो हम उसका कुछ चार्ज करते हैं और उसको पिच बाइबल आपको बना करके, और हमारी टीम ही उसको बना के आपके नाम से ही, आपके लॉगिन से ही उसको अपडेट कर देगी। या अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ शेयर करने के लिए कुछ भी, तो हम आपको दे देंगे वो वर्ड फॉर्मेट में, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके अपना पिच डेक अपडेट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट ये रहता है कि आप स्क्रीन प्ले दीजिए हमको। तो बहुत सारे ऐसे स्क्रीन राइटर्स, बहुत सारे ऐसे ऑथर्स होते हैं जो स्क्रीन प्ले खुद बना लेते हैं, उनको लगता है, मतलब वो बोलते हैं कि हमको स्क्रीन प्ले नहीं पता क्या होता है, तो हम क्या करते हैं कि उनसे स्क्रीन प्ले का सैंपल शेयर कर लेते हैं। तो उनको लगता है कि यार ये तो हम बना सकते हैं, तो वो बना लेते हैं। तो वो जब वो बना लेते हैं तो वो उसको अपडेट कर लेते हैं स्क्रीन प्ले के फॉर्मेट में, तब 2 एपिसोड 4 एपिसोड जो भी उनको करना है। अगर हम तो चाहेंगे कि अगर आपको बनाना आता है तो पूरा स्क्रीन प्ले बनाइए, क्यों नहीं, आप ही की किताब है, आप ही का कंटेंट है, तो आप ही को फ़ायदा होगा उससे, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो उसको भी मेरी टीम रिव्यू करती है। तो वो जो रिव्यू का जो पार्ट है वो हम लोग बहुत ईमानदारी से करते हैं, और उसमें कोई मतलब वो नहीं है। यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ 5 मिनट के लिए। हाँ, मान लीजिए किसी ऑथर ने साइन अप किया है जी, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू हैव दैट नंबर बाय 5000 जी, right? So now I am taking 50% of it, even more than less than 50% of it. 2000 मैं लेके चलता हूँ। जी जी। 2000 ऑथर ने आपके पास साइन अप किया, मान लीजिए 6 महीने में ये नंबर पूरा हो गया या 1 साल में हो गया। जी जी। नाउ 2000 सिनॉप्सिस तो आपके पास ऑलरेडी है। करेक्ट। बहुत सारे ऑथर ऐसे भी होंगे जो पहले भी कुछ लिख के रखे हैं। करेक्ट। सो जब कोई साइन अप कर रहा है वो तो मल्टीपल भी कर सकता है। हाँ, राइट। तो नाउ मैं ये लेके चलता हूँ कि सब लोग एक ही डाल रहे हैं। करेक्ट। आपके पोर्टल पे। करेक्ट। तो 2000 सिनॉप्सिस आपके पास है। राइट। नाउ ये 2000 का तो आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। हाँ। सो ये प्रोसेस क्या है? साइन अप कर दिया, आपके पास 2000 कंटेंट आ गया, मान के चलिए 5000 लोग आप उम्मीद कर रहे हैं। राइट। मैं 2000 नंबर लेके चलता हूँ जी पहले। जी। सो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ बुकटेनमेंट?
देन वी विल गो फॉर स्क्रीन पे। हाँ, तो उसमें क्या रहता है सर कि मेरी जो कंटेंट टीम है वो उसको रिव्यू करती है, सिनॉप्सिस को रिव्यू करती है। Okay. लॉग लाइन और सिनॉप्सिस, मतलब जो शॉर्ट सिनॉप्सिस होगी 500 वर्ड्स की जो सिनॉप्सिस होती है उसको रिव्यू करती है। ठीक है। और रिव्यू करके और फिर हम उसकी ग्रेडिंग कर देते हैं कि मतलब ये कंटेंट जो है इस ग्रेड का कंटेंट है, ये इस ग्रेड का कंटेंट है, इस ग्रेड का कंटेंट है। ये ग्रेड उनको भी दिखता है? ये ग्रेड, हाँ, ये इंटरनल मैटर है? ये नहीं, ये इंटरनल मैटर है, ये उनको नहीं दिखता है। Okay. ये इंटरनल मैटर है कि ये इस तरीके से ये हमारे पास में कंटेंट आया हुआ है। और जो बायर है, नो अब वापस से रोकता हूँ जी। ग्रेडिंग आपने कर दिया जी। कैसे ग्रेडिंग करते हैं? ABC की क्या फॉर्मेट है? हाँ, ABC करके ग्रेड करते हैं। नाउ मैं मान लेता हूँ कि 2000 में से जी 100 निकला A, हाँ 500 निकला B जी और बाकी निकला C। जी तो 500 प्लस 600 आपके A एंड B कैटेगरी के हैं। जी जी 600 के बाद जो 1400 बचे हुए हैं वो जी। 1400 C कैटेगरी के हैं। जी। हाउ ये 1400 अगर आपके प्लेटफॉर्म में दिखता रहे तो आपको नहीं लगता है कि दिख बहुत ज्यादा है लेकिन काम के बहुत कम है? तो हाँ। उनके साथ क्या करने वाले हैं आप? या 1400 जो राइटर हैं हाँ। जिन्होंने ये सिनॉप्सिस डाले थे जी, उनके पास कोई मैसेज जाता है कि नहीं इस टाइप का कंटेंट नहीं चलेगा, इसको रेक्टिफाई करिए या इसको हटा के दूसरा कुछ करिए? नहीं, ऐसा नहीं होता सर। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बायर्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में, एंटरटेनमेंट डोमेन में, हर टाइप का बायर अवेलेबल है। अच्छा, हर टाइप का बायर अवेलेबल है। अगर आप MX प्लेयर के ऊपर सीरीज देखेंगे तो बहुत ही लोअर लेवल मतलब की आपके कंपनी या आपके जो स्क्रीनिंग करने वाली जो टीम है वो किसी भी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट नहीं करते हैं? नहीं, ग्रेडिंग कर देते हैं। हाँ, ग्रेडिंग कर देते हैं, रिजेक्ट नहीं करते। क्योंकि वो रिजेक्ट करने में क्या होता है कि ऑथर को मतलब उसमें फिर डिससेटिस्फेक्शन होती है कि आप मेरे तो अगर वो प्रोडक्ट उसने कुछ मेहनत करके लिखा 6 महीने में 7 महीने में अगर वो बिका नहीं तो वो तो ज्यादा डिमोटिवेशन है रादर देन गिविंग हिम अ डायरेक्शन कि इस टाइप का थोड़ा सा मुश्किल है, इसको थोड़ा सा बदलिए। उसको गाइड करने में क्या प्रॉब्लम है? उसको हम गाइड करते हैं, लेकिन वो पहले C से B पे आए तो उसको फिर A पे ले जाने के लिए गाइड किया जा सकता है। उसमें बहुत सारे ऑथर्स ऐसे भी होते हैं। इसमें जैसे आपने जो 1400 वाली जो बात की ना, उसके पहले ही हम लोग फिल्ट्रेशन भी कर लेते हैं। उसके पहले भी कई बार फिल्ट्रेशन हो जाती है कि यार ये तो आपने जो डाला हुआ है ये तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो भी मेरे मतलब हमारी कंटेंट टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा वेग है या बहुत ही ज़्यादा ऐसा है जिसको अचीव करना जो है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आपने बहुत ही बिकॉज़ वो आपका है, कनेक्टिंग द डॉट्स चैलेंज हो जाएगा, हमारे लिए ही चैलेंज हो जाएगा ना उसको तो करना। तो वो जो 1400 है वो तो होता ही नहीं है 1400। आप ये मान के चलो कि वो 1400 भी आपको 100 ही मिलेगा हमारे यहाँ पे। तो ABC वो ये है, तो बस उतना ही रहता है। उसके पहले बहुत सारे रिजेक्ट भी कर देते हैं। सो नाउ आपके पास ये छटे हुए कंटेंट आ गया जिनके ऊपर आपकी बुकटेनमेंट की भरोसा है कि इस कंटेंट के साथ हम जस्टिफाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? नाउ द नेक्स्ट स्टेप, वो पिच बाइबल वाली बात हमारी हो गई थी। उसके बाद में हम स्क्रीन प्ले वाला शेयर कर देते कि सैम्पल स्क्रीन प्ले शेयर कर दिया। अब वो कुछ ऑथर्स उसको बना लेते हैं, कुछ ऑथर्स नहीं बना पाते। तो अभी हमने ये देखा कि हमने जैसे करीब 50 लोगों के साथ में स्क्रीन प्ले शेयर किया था। तो 50 में से आप समझिए करीब 15-20 लोगों ने स्क्रीन प्ले बना दिया। तो हमको वो देख के बड़ी खुशी होती है कि यार मतलब एक ऑथर जिसको न पिच डेक पता था आज से 15 दिन पहले, उसको पिच डेक भी बनाना आ गया, उसको स्क्रीन प्ले भी बनाना आ गया। तो वो ऑथर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और अपनी राइटिंग स्किल्स में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। और वो अब सिर्फ जो है वो एक लिटरेचर डोमेन के ऑथर नहीं रह गए, अब वो एंटरटेनमेंट डोमेन के स्क्रीन राइटर भी हैं, राइट। सो आज हमारे पास में अगर कोई ऐसा ऑथर आता है जिसके पास में जिसको स्क्रीन प्ले लिखना नहीं आता, ठीक है, और हमारे पास में एक ऐसा ऑथर भी है जिसको स्क्रीन प्ले लिखना आता है, तो और वो ये कहता है कि सर मेरे को तो शौक है स्क्रीन प्ले लिखने का, आप तो बता देना मेरे को स्क्रीन प्ले अगर कोई लिखना हो तो मैं तो दूसरों लोगों को भी स्क्रीन प्ले लिखने के लिए ओपन हूँ। मान लीजिए कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बैंगलोर में कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए सैलरी है, टाइम पास के लिए अपना लिख रहे हैं। तो हम बोल देते हैं कि यार तुमको स्क्रीन प्ले लिखवाना है, यार ये बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले लिखते हैं, फ्री में लिख देंगे, तुम्हारी किताब अपग्रेड हो जाएगी। हमने आप दोनों को ज्वाइन करा दिया तो हींग लगे ना फिट करी और आपका काम बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास, आपका प्रोजेक्ट अपग्रेड हो गया, राइट। सो वो बहुत ही अच्छा उन लोगों के लिए हो जाता है। और वहाँ से इतना भी हो जाता है ना। अच्छा, उसमें क्या होता है, कुछ ऑथर्स ऐसे होते हैं जिनको स्क्रीन प्ले लिखना आता है, वो कहते हैं कि जी ऐसा है कि हम कुछ चार्ज करेंगे, हमको स्क्रीन प्ले लिखना आ गया तो हम कुछ चार्ज करेंगे। तो हम कहते हैं ठीक है सर, ये है आपको लिखवाना है, ये इतना चार्ज करेंगे, जो भी चार्ज करेंगे एक्स अमाउंट,
वो आप इनको पे करिए, लिख लीजिए, कोई इशू नहीं, आप दोनों You को are just the middleman. वी आर जस्ट द To मिडिलमैन bridging देयर, हाँ them ब्रिजिंग both. देयर, Okay. क्योंकि हमारे को सो ऐसा स्क्रीन प्ले तक का जो सफर है वो हम्म। बुकटेनमेंट ही डिसाइड कर रहा है, तब तक कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमने उनको प्रोसेस बता दिया कि ये स्क्रीन प्ले है, ये बिलो द लाइन बजट है, ये डायरेक्टर ऑन बोर्डिंग मतलब माय पॉइंट इज और माय हाँ, क्वेश्चन इज हाँ। कि सिनॉप्सिस आने के बाद जब आप उसकी छटनी करते हैं जी, या जब जी। आप उसकी शॉर्टिंग कर लिया जी जी और जो आपके हिसाब से काम के हैं, वंस जी। यू गेट दोज काइंड ऑफ कंटेंट, हाँ हाँ सो आर बुकटेनमेंट pitching those to the production houses, or after getting the screenplay only हाँ। you are going to pitch the production houses? इट डिपेंड्स अपॉन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। कई बार हम लोग स्क्रीन प्ले आने के बाद भी पिच करते हैं और कई बार हम लोग पिच बाइबल फॉर्मेट में भी पिच करते हैं, उसमें Okay. कोई इशू नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उसमें भी अगर हमको पिचिंग करना है तो हम लोग चाहते ये हैं कि जब, क्योंकि बेसिकली तो सीरियस बायर जो है वो स्टूडियो है और OTT प्लेटफॉर्म है, राइट। प्रोडक्शन हाउसेज आर ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द OTT एंड द स्टूडियो। सो हम ये चाहते हैं कि जो हमने पूरा प्रोसेस चॉकआउट किया है, क्योंकि एक बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में हम लोग जा रहे हैं, चिकन एग सिचुएशन काफ़ी सारी ज़्यादा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, कि पहले एक्टर आएगा, कि पहले डायरेक्टर आएगा, कि पहले प्रोडक्शन हाउस आएगा, कि पहले कास्टिंग एजेंसी आ जाएगी, कि स्क्रीन प्ले पहले होगा, क्या होगा, तो वो गोल गोल घूमता रहता है। तो हमने कहा कि यार इसको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करते हैं, थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले जो कहानी है, कहानी के बाद स्क्रीन प्ले, बिलो द लाइन बजट, उसके बाद कास्टिंग एजेंसी, उसके बाद डायरेक्टर ऑन बोर्डिंग, कास्टिंग एजेंसी ऑन बोर्डिंग, प्रोडक्शन हाउस ऑन बोर्डिंग, और प्रोडक्शन हाउस ऑन बोर्डिंग के बाद और नरेशन वगैरह हो गया, आपका लीड स्टार कास्ट वगैरह हो गया, उन्होंने एक सॉफ्ट हाँ बोल दिया, यार मेरे को ये कैरेक्टर पसंद आ रहा है, मैं इसको करने के लिए तैयार हूँ। साइनिंग नहीं दिया है अभी उसको, लीड एक्टर को साइनिंग नहीं दिया है, केवल एक सॉफ्ट अपने को यस पता चला उनसे। उसके बाद हम लोग जाते हैं स्टूडियो के पास में, अगर स्टूडियो के लेवल का प्रोजेक्ट है तो, नहीं तो फिर सीधा OTT के पास में कि सर ये हमारी स्लेट है, इसमें ये डायरेक्टर है, ये बिलो द लाइन बजट है, ये स्क्रीन प्ले है, स्क्रीन प्ले इन्होंने लिखा हुआ है। स्क्रीन प्ले भी ऐसा नहीं है, क्योंकि स्क्रीन प्ले में क्या है कि हमारे पास में काफ़ी सारे ऐसे स्क्रीन राइटर्स हैं जिनका बहुत अच्छा काम मार्केट में आ चुका है। समीर अरोरा साहब हमारे मेंटोर हैं, तो समीर अरोरा साहब ने ये लिखी है, बम्बई मेरी जान लिखी है, पटना शुक्ला लिखी है, बैड कॉप लिखी है, वो हमारी कंपनी में हमारे मेंटोर हैं वो। तो उनके मतलब सुपरविजन में बहुत सारे स्क्रीन राइटर्स हैं, उस तरह से उस लेवल के बहुत सारे स्क्रीन राइटर्स हमसे जुड़े हुए हैं। राजीव बर्नवाल हमारे मेंटोर हैं, जिन्होंने जहानाबाद डायरेक्ट करी, जो सोनी लिव पे स्ट्रीम हो रही है। वध उनकी डायरेक्टेड है, जिन्होंने संजय मिश्रा और नीना गुप्ता वाली जो वध है वो डायरेक्ट करी उन्होंने। तो उस तरीके से हमारे पास में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है एंटरटेनमेंट उसका। सो उनके सुपरविजन में ये सारा काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि बुकटेनमेंट वेगली अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है, ये इन सब लोगों के सुपरविजन में जब वो कंटेंट बनेगा, क्योंकि कंटेंट हमको नहीं बनाना है, वी आर नॉट द कंटेंट मेकर्स, प्रोडक्शन हाउस को बनाना है। सो इन लोगों के सुपरविजन में बनेगा तो कंटेंट अच्छा ही बनेगा, ये मेक श्योर हो जाएगा। अब कंटेंट जब प्रोडक्शन हाउसेस में जाते हैं जी, सो नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ जी 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 कि प्रोडक्शन हाउसेस को पता है कि मुझे तो पैसा लगाना है, जी, तो बजट इज द मेजर कंस्ट्रेंट, राइट राइट। अब अगर कोई सीरीज बन रहा है 5 एपिसोड के या 10 एपिसोड के, तो उनको पता है 10 एपिसोड का मेरा बजट क्या होगा, जी 5 एपिसोड में मेरा बजट क्या होगा। जी नाउ जो आपका पिच डेक है, जी वहां से लेके जो स्क्रीन प्ले का जो सफर है वो जी। डिसाइड करता है कि कितना लेंथ होगा जी उस कंटेंट का। जी सो यहाँ पे स्क्रीन प्ले का बहुत मेजर रोल होता है जी, इन क्रिएटिंग और मेकिंग और कंफर्मिंग द जी। बजट एस्पेक्ट। एब्सोल्युटली यस सो ये वाले जो पोर्शन है, जी, यहाँ पे कौन मेजर रोल प्ले करता है? बिकॉज प्रोडक्शन हाउस तो हमेशा बोलेगा कि मेरा तो बजट कम है, जी राइट। बिकॉज अगर कोई नया कंटेंट आ रहा है या नया राइटर आ रहे हैं, उनका बजट कभी भी ज्यादा नहीं होता है, राइट। सो वो तो हमेशा कम बजट बोलेगा। हाँ, सो अब ये कम बजट में अगर आपको 10 एपिसोड बनाना है, तो ये स्क्रीन प्ले को आप लोग किस तरीके से डेवलप करते हैं और क्या प्रोसेस है आप लोगों के पास कि आप कम बजट में भी हाँ, उस कंटेंट के साथ जस्टिफाई कर सके? राइट। सो बेसिकली हमारी जो स्क्रीन प्ले राइटिंग की जो टीम है, जो स्क्रीन प्ले लिखती है, हम उनको ये बताते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट का बजट है वो 1 CR से लेके 2 CR तक के प्रोजेक्ट का ही बजट का अपने को बनाना है स्क्रीन प्ले। ओके। स्क्रीन प्ले ऐसा लिखना है कि ये जो कंटेंट है वो 1 CR तक में बन जाए, या अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है या सेकंड सीजन में जा रहा है, थर्ड सीजन, फोर्थ सीजन में जा रहा है, तो फिर वो सेकंड फेज की बात है। फिर वो पूरा स्क्रीन प्ले अगर कर रहे हैं हम लोग, तो फिर वो 2 करोड़ रुपए के बजट के अंदर बन जाना चाहिए। अभी हमारा मेजर फोकस एरिया तो 1 CR ही है। क्यों? क्योंकि
अभी अमेजन मिनी जो कंटेंट अप्रूव कर रहा है या हॉटस्टार क्विक्स जो कंटेंट अप्रूव कर रहा है, जो बना रहा है, जो शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट है, वो 1 CR से 2 CR तक के बजट का ही कंटेंट वो भी अप्रूव कर रहे हैं. सो उससे आगे हम लोगों का अभी फोकस नहीं है, क्योंकि वी आर द कंपनी दोज हु आर टेकिंग आवर ऑथर्स फ्रॉम 0 to 1. राइट. सो हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि ये बहुत महंगा नहीं हो जाए, महंगा नहीं बनना चाहिए. हमारे स्क्रीन राइटर्स मेक श्योर करते हैं. और हमारे प्रोडक्शन हाउसेस के पास जब हम जाते हैं तो हम वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. ऐसा नहीं सेफ भी है, क्योंकि थोड़ा सा बजट अगर कम होगा तो मल्टीपल बायर्स पॉसिबल है. राइट. सो वो फोकस एरिया हमारा फिक्स है कि हमको किस में काम करना है. हम लोग बहुत बड़ी फुल लेंथ वेब सीरीज नहीं बना रहे. ओके. राइट. सो थोड़ा सा आप पीछे जाते हैं जी. आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, ऐसे इस फील्ड में आए कैसे आप? वो थोड़ा सा एकदम बेसिक में चले जाइए, बचपन वाली बात में कि कहाँ से शुरुआत हुई, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ है, किस शहर में पले बड़े हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचे? जी. तो बेसिकली मतलब हम लोग इंदौर के ही रहने वाले हैं एक तरह से, यूं देखा जाए तो. ओके. बट मेरे फादर जो है वो एक नियर बाय टाउन है धार, वहाँ पर जो है शिफ्ट हो गए थे. इंदौर से धार शिफ्ट हो गए थे काफ़ी समय पहले. बट आई वॉज स्टडिंग इन इंदौर ओनली. ओके. फॉर फर्स्ट फ्यू ईयर्स. उसके बाद फिर कुछ एजुकेशन मेरी धार में हुई, और वहाँ से एजुकेशन होने के बाद फिर ग्रेजुएशन मेरा दोबारा इंदौर से ही हुआ. तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इंदौर में ही निकाला हुआ है. ओके. और मैंने आर्किटेक्चर में अपना ग्रेजुएशन किया, और आर्किटेक्चर में IPS अकेडमी से मेरा ग्रेजुएशन है इंदौर से. उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया लैंडस्केप आर्किटेक्चर में MDU रोहतक से, और गुड़गांव में, नोएडा में, पूरा दिल्ली NCR में मैं करीब 10-12 साल रहा, और मैंने आर्किटेक्चर में काम किया, लैंडस्केप आर्किटेक्चर में काम किया. 2016 में मेरे को एक डिसीजन लेना था कि मेरे को अब आगे क्या करना है. तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे. या तो मैंने ये सोच लिया था कि या तो मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा लैंडस्केप के लिए, और फिर आगे परस्यू करने के लिए, क्योंकि मैंने जितना एक्सप्लोर करना था लैंडस्केप को वो एक्सप्लोर मैंने कर लिया था. मैंने मास्टर्स किया ही इसलिए था कि मास्टर्स करने के बाद फिर मैं जाऊंगा बाहर. बट 2016 में लैंडस्केप आर्किटेक्चर का एक लिमिटेड स्कोप ही हुआ करता था. हाँ, लिमिटेड स्कोप था, इसीलिए तो मुझे ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करना था, क्योंकि एक्सप्लोर उस समय ऑस्ट्रेलिया में लैंडस्केप की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी. बट मैं सिंगल किड हूँ अपने पेरेंट्स का. सो मैंने कहा कि नहीं यार, मैं इनको छोड़ के तो नहीं जाऊँगा, तो रहना तो मुझे यहीं है. फिर उसके बाद जब मैं अपना 2016 में ही जब जॉब कर रहा था, तो उस टाइम पे ही मैंने ये सोच लिया था कि मेरे को कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरल शुरू करना है. तो मैंने साइड बाय साइड जो है एक पब्लिकेशन हाउस छोटा सा एस्टैब्लिश करने का मैंने मूड बना लिया था, क्योंकि मेरे को एंटरटेनमेंट डोमेन में दिल्ली NCR रीजन में, क्योंकि मेरे को जो है मेरा लिटरेचर में जो जर्नी है वो 2007 से शुरू हो जाती थी. तो मैंने ऑर्कुट ज्वाइन कर लिया था. ऑर्कुट में फिर गुलजारियंस करके कम्युनिटी थी, वो ज्वाइन कर ली थी. तो फिर वो एक कम्युनिटी में मेरे को लोग जानते थे, मतलब पोइट्री अरीना में, गज़ल अरीना में मेरे को लोग जानते थे. तो फिर हमने राज साहब से हम लोग मिले, मुशायरे वगैरह पढ़े, लिखा भी, लोगों से मिले. कम्युनिटी बिल्डिंग जो है उस समय से ही हम लोग, पोइट्री की कम्युनिटी बिल्डिंग हमारी हो गई थी उस टाइम पे. तो वो हमने कहा कि यार चलो अब इसको जो है करते हैं. तो फिर मेरे एक दोस्त हैं इरशाद खान सिकंदर, उनकी किताब हमने पब्लिश की. तो वो जो है वहाँ से फर्स्ट पब्लिकेशन हमारा शुरू हो गया. फिर मैंने जब ये देखा कि अब मेरे को चूज़ करना है कि भाई अब इसको कैसे लेके जाना है, पब्लिकेशन को आगे कैसे लेके जाना है, तो मैंने अपनी सैलरीज़ को कंपेयर किया पब्लिकेशन हाउस से कि पब्लिकेशन हाउस में प्रॉफिट्स क्या है क्या नहीं है. सो फिर हम जो है वहाँ से हमने शुरुआत की. तो मैंने देखा कि पब्लिकेशन हाउस में एक अच्छा स्कोप है. पब्लिकेशन हाउस में ऑथर्स को बहुत ज़रूरत है एक नए ऐसे पब्लिकेशन हाउस की जो बहुत अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी प्रोवाइड कर सके, बहुत अच्छे से काम कर सके, प्रूफ रीडिंग प्रॉपरली कर सके, कवर डिज़ाइनिंग अच्छा कर सकते, क्योंकि मेरा एक वो आर्किटेक्चरल ब्रेन है, डिज़ाइन ब्रेन है, टेक्निकल ब्रेन है. तो मैं अपना इनपुट उसके अंदर दे सकता हूँ, एक अच्छी टीम बना सकता हूँ, एक अच्छा काम कर सकता हूँ. फिर मेरे को 2016 में ही अपने को फाउंडर मिल गए वीनस केसरी. फिर हम लोगों ने 2019 में रेड ग्रैब बुक्स एस्टैब्लिश किया. 3 साल तक हम लोगों ने साथ में काम किया. फिर रेड ग्रैब बुक्स में हम लोगों ने साथ में काम करने में कई सारे टाइटल्स पब्लिश किए. अभी तक हम लोग 1000+ टाइटल पब्लिश कर चुके हैं, जिसमें करीब 400 से ज़्यादा स्टोरीज़ हैं. हाँ, और करीब 20,000 से ज़्यादा गज़लें, जैसा कि मैंने आपको बताया. सो हम लोगों के पास में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है. फिर हमने बुकटेनमेंट पे किया फोकस. तो वो बेसिकली जर्नी मेरी वो शुरू वहीं से होती है. सो बुकटेनमेंट की शुरुआत 2019 में हुआ है.
बुकटेनमेंट की शुरुआत 2022 में हुई है। 2022 में। रेड क्रैप बुक्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत 2019 में हुई है। ओके। जी। सो नाउ ये बुकटेनमेंट में आपने सेगमेंट को कैसे सेगमेंटाइज किया? बुकटेनमेंट में मैंने मतलब हम लोगों ने बुकटेनमेंट में कैसे किया है कि दो चीज़ें हैं, एक तो प्रोज है और एक पोइट्री है। तो अभी हमारा फोकस प्रोज ही है, और प्रोज में भी ये है कि या तो शॉर्ट स्टोरी होगी या लॉन्ग स्टोरी होगी या नॉवेल होगा। अब इसमें हालांकि आने को तो इसमें और भी चीज़ें आ जाती है, डॉक्यूमेंट्रीज आ जाती हैं, मेमोयर्स आ जाते हैं। कई बार हम लोग मेमोयर्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। सो इस तरीके का सेगमेंटेशन है जॉनरा वाइज। जी। सो नाउ थोड़ा सा ना ग्लोबली इसको बात कर लेते हैं। जी जी जी। अभी अगर एकदम करंट टाइम की अगर बात करें जी, 2024 जी। की, तो चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है कंटेंट क्रिएशन का। जी। सो चाइना में एक टिकटॉक करके हुआ करता था जो सब पता है। जी जी जी। एट प्रेजेंट चाइना एक ऐसा मार्केट है जहाँ जी। पे 1.5 मिनट का कंटेंट डेवलप हो रहा है, जी और जिनके लिए तमाम OTT प्लेटफॉर्म अवेलेबल है चाइना में, जी जो पेड सब्सक्रिप्शन बेसिस में काम करते हैं। जी। बिकॉज आज की तारीख में अगर हम बात करें, सो जी। पहले हमारी मूवीज हुआ करता था 3-3.5 घंटे की, वहां से कम होकर 2 घंटे में आए, फिर 1.5 घंटे में आए। आज हम शॉर्ट फॉर्म्स और शॉर्ट्स और रील्स में ही खत्म हो जाते हैं। Right, तो पेशेंस है नहीं। राइट। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट चाइना हैज डेवलप्ड दैट 1.5 मिनट कंटेंट, और उसके लिए कंप्लीट प्रोडक्शन हाउसेस है हु आर वर्किंग, एंड दैट इज वन ऑफ द बूम, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आगे चल के ये अराउंड द वर्ल्ड जैसे टिकटॉक को उन्होंने फैलाए थे वैसे ये फैलेगा। राइट। माई पॉइंट इज राइट। कि जब हम कोई कंटेंट आज डेवलप करते हैं, हमारे पास हमेशा एक टाइम कंस्ट्रेंट है। राइट। सो लोग वैसा ही कंटेंट कंज्यूम करना चाह रहे हैं जो उनको 2 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में मैक्सिमम उसको समझ में आए कि उसका रिटेंशन आगे जाके क्या होगा। सो इस चीज को या इस चैलेंज को आप लोग कैसे एड्रेस कर रहे हैं? सर बेसिकली अभी क्या है कि हम लोग जो जिस तरह का कंटेंट बना रहे हैं वो अभी ग्लोबल ऑडियंस के लिए हम लोग उतना फोकस नहीं है। अभी हम लोग जो फोकस्ड हैं, क्योंकि हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं या जो हमारा जो आसपास का है माहौल, उस माहौल में जिस तरीके से लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो अभी हमारे यहाँ तो लॉन्ग फॉर्मेट वेब सीरीज़ बहुत चल रही हैं। जैसे गुल्लक का 4था सीज़न आ गया, मिर्ज़ापुर का 3रा सीज़न आ गया। सो अभी क्या है कि अभी तो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बहुत चल रहा है। हॉलीवुड में भी अगर अपन देखें तो बहुत 10-10 सीज़न आ गए हैं, 12-12 सीज़न आ गए हैं। बहुत सारी ऐसे हॉरर शोज़ हैं जिनका बहुत ही लंबा है, 10-10 12-12 सीज़न का आ चुका है, और हर सीज़न में 10-10 12 एपिसोड है, और हर 10-12 और कोई भी एपिसोड वो 50 मिनट से कम का कोई एपिसोड ही नहीं है। तो उस तरीके का लॉन्ग कंटेंट भी लोग देख रहे हैं, वो भी बात है। लेकिन जो आपने एक जो रील्स की बात की और वो जो बात की आपने कि जो छोटा कंटेंट, 1.5 मिनट का कंटेंट, 2 मिनट का कंटेंट, तो क्या होता है कि हर चीज़ का अपना सेगमेंटेड ऑडियंस है। हर चीज़ का ऑडियंस है, अपना ऑडियंस है उनका। तो 4-4 घंटे लंबे मुशायरे होते हैं। मैं आपको आपकी बात को अगर इंडियनाइज करके बात एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं तो 4-4 घंटे के 6-6 घंटे के मुशायरे होते हैं, ठीक है। और 1.5 2-2 मिनट के ओपन माइक भी होते हैं, 1-1 घंटे के ओपन माइक भी होते हैं, जहाँ पर 1-1 घंटा लोग जो है कॉमेडियंस को सुन रहे हैं, स्टैंड अप वालों को सुन रहे हैं। तो वो भी चीज़ें होती है। तो ऐसा नहीं कि मुशायरे होने बंद हो गए, मुशायरे हो रहे हैं और हजारों लोग मुशायरा देख रहे हैं। तो वो लोग हैं, वो उनका ऑडियंस है, उनको देखना है, मुशायरा ही देखना है, रात भर जाग के मुशायरा देखना है। तो वो हर तरीके का अपना ऑडियंस है, तो वो ऑडियंस अपना कंटेंट ढूंढ ले रहा है। ओके, ऐसी मेरी समझ है। हाँ ऑब्वियसली जी। लेकिन मैं आपको बस इसलिए पूछ रहा था बिकॉज जो भी ऑथर होते हैं या जो भी प्रोडक्शन हाउस होते हैं, उनका मोटो एक ही होता है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। सो मैक्सिमम लोगों तक जब भी हम पहुंचने की बात करते हैं जी, हम अपना ज्यादा नहीं सोच के उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचना शुरू करते हैं कि वो लोग क्या पसंद कर रहे हैं। जी। सो वी ऑलवेज ट्राई टू मेक आवर ऑथर राइट दोज काइंड ऑफ कंटेंट्स हु आर एक्सेप्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, एंड मेजरली लुकिंग टुवर्ड्स द यंग पॉपुलेशन हु इज कॉन्स्टेंटली ऑन फोन एंड चेकिंग व्हाट आर द न्यू थिंग्स कमिंग इन। राइट। मैं आपको बताता हूँ सर, इसमें मेरा सोचना ऐसा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इसके अंदर। बेसिकली क्या होता है कि जैसे एंटरटेनमेंट डोमेन के जो ऑथर्स हैं, स्क्रीन राइटर्स हैं, या जो लिखने वाले जो लोग हैं, जो फिल्में लिखते हैं या जो कहानियाँ लिखते हैं, है ना, जो सीरीज़ लिख रहे हैं, ठीक है,
वो प्रोडक्शन हाउस के सुपरविजन में लिखते हैं या OTT प्लेटफॉर्म के सुपरविजन में लिखते हैं। उनको कोई बताता है, गाइड करता है Yes. कि यार आजकल वो बहुत चल रहा है यार, वैसा लिखो, ठीक है। तो ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंस आ गया उसमें, राइट। और जो लिटरेचर डोमेन का ऑथर है वो तो वही लिखेगा जो कहानी उसके दिमाग में आ चुकी है, जो कैरेक्टर उसके दिमाग में आ चुका है। वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है, उसको तो अपनी कहानी कहनी है, उसको न पैसा चाहिए उसका, वो तो उल्टा पैसा खर्च करने को तैयार है। पब्लिकेशन में पैसा खर्च करता है, मार्केटिंग में पैसा खर्च करता है, प्रमोशन में पैसा खर्च करता है, हर चीज में पैसा खर्च करता है। तो उसको तो अपनी कहानी कहनी है, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि इसके ऊपर फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी। लिटरेचर डोमेन के ऑथर की सबसे अच्छी बात यही है, और यही वजह है, सबसे बड़ी वजह यही है कि वो ओरिजिनल स्टोरीज हैं, वो किसी आइडिया से इन्फ्लुएंस नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि बुक एडेप्टेशन का जो फैशन है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। बुक एडेप्टेशन इस समय बूम पे है। और वो भी क्योंकि हम लोगों को तो आदत है ना हॉलीवुड से इन्फ्लुएंस होने की, हर जगह है ना। शार्क टैंक भी तो पहले शार्क टैंक वहां आया, उसके बाद हमारे यहाँ आया। पहले कौन बनेगा करोड़पति वहां आया, फिर हमारे यहाँ आया। तो वो तो हमको तो आदत है। तो वो है कि हम तो जो है ये लेकर के आएंगे कि जी बुक एडेप्टेशंस, अच्छा ये बुक एडेप्टेशंस चल रहा है, चलो अब हम भी बुक एडेप्टेशंस करेंगे। तो अब वो बुक एडेप्टेशन चल रहा है। अभी मणिरत्नम साहब का वो स्टेटमेंट आया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर डोमेन की कहानियों के ऊपर फिल्म बननी चाहिए। मणिरत्नम साहब का स्टेटमेंट है ये। तो वी आर ऑन द राइट पाथ। यही हमारा वैलिडेशन है हमारे स्टार्टअप का कि मणिरत्नम साहब ने ऐसा बोल दिया। तो यही है हमारा कि ओरिजिनल स्टोरीज हैं। सो वो जो होता है ना कि जो आपने बोला कि लार्जर ऑडियंस, कम टू योर पॉइंट, कि लार्जर ऑडियंस की जो आपने बात करी कि लार्जर ऑडियंस के लिए वो ऑथर चाहता है कि उसको अट्रैक्ट करे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि उसने जो कहानी लिख ली है उसको उसका व्यूअर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा ही है ना। जैसे हम लोग पोइट्री में अगर बात करें तो पोइट्री में दो तरह में सेगमेंटेड हो जाती है पोइट्री। कि एक तो किताबी पोइट्री है जो बुक पब्लिशिंग में या किताब में लिखने में, जो उसको आप जब पोइट्री पढ़ोगे किताब में तो ही वो आपको आनंद देगी। और दूसरी जो पोइट्री है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स की पोइट्री है, जो जब मुशायरे में आपको शायर अपने अंदाज में शेर सुनाएगा तो ही आपको उसके अंदाज में समझ में आएगा वो शेर, और आप उस अंदाज को जो है वो उसका आनंद ले पाएंगे, लुत्फानंदोज हो पाएंगे उससे, उसके शेर सुनाने के तरीके से। तो वो परफॉर्मिंग आर्ट्स है। तो दो पोइट्री यहाँ पे दो तरीके से सेगमेंटेड है। तो वो पोइट्री जो है ना वो जो है ऑडियंस ड्रिवन होती है। वो पोइट्री जो मुशायरे में पढ़ी जाती है कि कौन से शेर पे कितनी अच्छी दाद मिलेगी तो वो शेर सुनाया जाए, वो है। और दूसरी एक किताब की पोइट्री है, वो शायर अपने मन में जो आएगा वो उसको वैसा ही लिखेगा। अब वो किसी को पढ़ना हो तो पढ़े और ना पढ़ना हो तो मत पढ़े, ये है। ओके, नाउ थोड़ा सा इस एस्पेक्ट में मैं बात कर लेता हूँ, आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ जो हमको बाहर से और ऊपर से कुछ नैरेटिव्स आते हैं। जी जी। लाइक ये जो कंटेंट क्रिएशन वाली जो वर्ल्ड है इज मेजरली प्रोडक्शन हाउस ड्रिवन एक फॉर्मेट है। हाँ, जहाँ पे प्रोडक्शन हाउस अप्रूव करता है कि किस टाइप का कंटेंट उसको क्रिएट करना है। एंड आज की तारीख में जितने भी, अगर मैं मीडियोकर से थोड़ा सा ऊपर लेवल के जो प्रोडक्शन हाउसेस की बात करूं, सो दे आर नॉट गोइंग ऑन फ्लोर विथ एनी ऑफ द कंटेंट टिल द टाइम दे आर नॉट गेटिंग एनी ऑथराइजेशन फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म। राइट, लाइक कि जब तक कोई प्लेटफॉर्म उसको ओके नहीं बोल रहा है, राइट, हो सकता है अमेजन प्राइम हो सकता है नेटफ्लिक्स हो सकता है डिज्नी हॉटस्टार हो, कोई भी हो, राइट, जब तक वो नहीं बोलता कि हाँ मैं आपका पब्लिश करूंगा या मैं आपका परचेस करूंगा, तब तक वो फ्लोर पे नहीं लेके जाता है। राइट। सो ये जो चैलेंज है यहाँ पे, तो आपका स्टोरी प्रोडक्शन हाउस को उसको पसंद आना चाहिए। राइट। तो जो मैं पहले आपको पूछ रहा था कि लार्जर ऑडियंस को पहुंचने के लिए जो कंटेंट होना चाहिए, बिकॉज प्रोडक्शन हाउस तो यही चाहता है, बिकॉज उनको तो मल्टीपल रिसोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट करना है। राइट। उनको कंटेंट या ऑथर से मतलब कम होता है। हाँ, उनको मतलब होता है रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। इसीलिए अभी तक का जो नैरेटिव है वो तो यही है कि पूरे कंटेंट में अगर सबसे कम किसी के पास पैसा होता है वो होता है राइटर। हाँ, जबकि वो होता है बेस पूरे स्टोरी जी। होना चाहिए कंप्लीटली उल्टा। जो आज हम देख रहे हैं ये सलीम जावेद के ऊपर वापस से हम बना रहे हैं स्टोरीज, कि उस समय मेन लीड एक्टर के जितना ही पैसे वो लोग चार्ज करते थे, सो दे आर नाउ ट्राइंग टू क्रिएट दैट वे, राइट, कि भैया स्टोरी की ऊपर ही तो सब कुछ है। करेक्ट, बट एक्चुअल में वो है नहीं, एक्चुअल में जस्ट उल्टा है। करेक्ट। सो हाउ यू पीपल एड्रेस दैट कि जो लिख रहा है उसी से आप स्क्रीन प्ले भी करवा रहे हो, लेकिन सबसे कम पैसे उन्हीं को ही मिल रहा है।
सो Right. ये जो रेवेन्यू वाली जो डिसिमिलरिटी है राइट इन दिस एंटायर सेक्टर, राइट हाउ यू वांट टू एड्रेस थ्रू योर स्टार्टअप? हाँ, इसमें सर क्या है कि हम इसको ऐसे एड्रेस कर रहे हैं कि प्रोडक्शन हाउस जो है या जो भी बायर है वो तो कभी प्रोसेस नहीं बताना चाहता, या वो तो कभी ये नहीं बताना चाहता कि एक कहानी की वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है। उसका कोई फॉर्मेट होगा ना, उसका कोई तरीका होगा। एक कहानी है, वो कहानी की कीमत कितनी होगी? क्या वो कहानी की कीमत 1 लाख रुपए है, या वो कहानी की कीमत 5 लाख रुपए है, कि वो कहानी की कीमत 20 लाख रुपए है? ये कैसे तय होगा? ये तो जो व्यापारी है या जो बायर है वो तो कभी नहीं बताना चाहेगा ना इस चीज़ को। वो तो चाहेगा कि मैं Yes, 1 लाख true. रुपए में इस कहानी को ले लूँ, Yes, या yes. 2 लाख रुपए में इस कहानी को ले लूँ। Yes, yes, true. और ऑथर को तो ये पता ही नहीं कि मेरी कहानी 1 लाख रुपए की है, हाँ, कि हाँ. 5 लाख की है, कि 10 लाख की है। And you are already working with the newcomers, यस so they also don't have any kind of any idea. यस। तो वहां पे क्या है ना कि हमने जो पिछले 2 साल में काम किया है उसमें हमने ये पता किया है कि एक कहानी की कीमत कैसे निकाली जाती है। राइट, कोई ना कोई फॉर्मूला होगा ना यार, कोई ना कोई मैथ्स होगा। ऐसे हवा में थोड़ी होता है कि भाई मेरे को 2 लाख रुपए में कहानी दे रहे हो क्या, आप ये 2 लाख के फिगर पे कहाँ से पहुंचे? उसमें क्या है ना कि हमने उस फॉर्मूले को पहले समझा कि वो क्या है। पहले तो आप ये बताओ कि आपके प्रोजेक्ट का बजट क्या है। ठीक है जी, आपके प्रोजेक्ट का बजट है मान लीजिए 2 करोड़ रुपए। ठीक है, उस प्रोजेक्ट के बजट का 5% जो है वो कंटेंट के लिए सिक्योर्ड है, दैट इज फॉर श्योर। ये हम ऑथर्स को बताते हैं Okay. ताकि उनको ये पता रहे, चाहे वो हमसे काम कराएं, हमारे साथ काम करें या ना करें, वो एक अलग बात है, लेकिन You mean to आपको say ये that पता there रहे। is a transparency in the Yes, entire format, yes, yes. कि how that money will be floating Yes. in different Yes. segment. 5% हो गया, 2 करोड़ का 5% जो भी फिगर आया, ठीक है, वो 5% कंटेंट के लिए है। और कंटेंट कैसा डिवाइडेड है? कंटेंट स्प्लिट है स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग के फॉर्मेट में। यही 3 फॉर्मेट में स्प्लिट है कंटेंट। ये फिक्स हो गया हमारा। तो क्या आप इससे ओके हैं कि टोटल बजट का 5% इज गोइंग टू कंटेंट? हाँ, वी आर ओके विद इट। जनरली क्या होता है कि कई बार इन कुछ केसेस में जब आपका अच्छा नाम हो जाए या जब आपका कुछ आ जाए कंटेंट, तो फिर आप अपनी शर्तों में भी काम कर सकते हो। जैसा आपने जावेद साहब का और उनका एग्जांपल लिया, आप 6% भी मांग सकते हो, आप 7% भी मांग सकते हो, आप 8% भी मांग सकते हो। वो तो आपके कैलिबर पे है कि जो है वो कितना। बट इज दैट 5% इज द कैपिंग और इट इज बेयर मिनिमम? 5% इज एवरेज। ओके, 5% इज एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट, Okay. राइट। सो 5 में अगर मैं एवरेज में मान लूँ तो वो स्प्लिट है हमारा स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायलॉग्स में। अब उस 5% का 50% इज स्क्रीन प्ले, उस 5% का, आई गॉट इट, राइट। यस। उस 5% का 50% इज स्क्रीन प्ले, 25% इज स्टोरी एंड 25% इज डायलॉग। ओके, ये स्प्लिट है। ये स्प्लिट भी पता होना जरूरी है सबको। अब आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये अब क्लियर हो गया, तो अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई हमारे साथ कोई ऑथर काम करे या ना करे, तुमसे कोई पूछे कि भाई कहानी का कितना पैसा दे रहे हो, तो आप ये पूछो कि जी आपका प्रोजेक्ट का बजट क्या है। या आप नहीं पूछ सकते तो हमारे थ्रू पूछिए, हम पूछेंगे। देन यू विल गेट दैट एंटायर हाँ, आइडिया कि हाउ मच इट विल हाँ, कमिंग टू इन योर हम किटी। पूछेंगे। हाँ ओके, हाँ सो नाउ माय पॉइंट इज, एक बार आपने ये पूरा स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लिया, सब कुछ आपके पास आ गया, स्क्रीन प्ले आपके पास आ गया है। नाउ यहाँ पे मेजर जो बातें आती है कि आज की तारीख में हम बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में भी ये चैलेंजेस फेस करते हुए देखते हैं कि प्रोडक्शन हाउसेस के पास जब तक 100% कंट्रोल नहीं होता है तब तक वो जिस तरीके से कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो नहीं बना पाता है, राइट। बिकॉज किसी ना किसी का दबाव होता है, किसी ना किसी का सुपरविजन होता है, किसी ना किसी ने अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि राइटर कुछ अलग सोच के लिखा है। अब आप उसको कमर्शियलाइज करने के चक्कर में उसमें आपने फॉर एन एग्जांपल अपने आइटम सॉन्ग डाल दिया तो उसमें मैच ही नहीं करता है। सो राइटर भी मन मार के काम करता है मजबूरी में। सो ऐसा अभी एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है रिसेंटली इन आवर कंट्री दैट सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास एक इन हाउस कंप्लीट पैकेज हो जहां पे हम अपना कंटेंट को जिस तरीके से चाह रहे उस तरीके से क्रिएट कर सके। And we should be having multiple production houses or studios who will back us by publishing on their platform. So now ये जो नए वाले जो जनता आपके पास है इनके साथ ये वाले चैलेंज को एड्रेस करना बहुत टफ है, राइट। बिकॉज इन दिस कंडीशन यू हैव बीन ऑलवेज इन एन अंडरहैंड टू द प्रोडक्शन हाउसेस और द प्लेटफॉर्म ओनर्स। अब इसको कहाँ तक आप जस्टिफाई कर पाएंगे
कि जो राइटर जिस कंडीशन में या जिस सोच के साथ लिख रहे हैं वो बिना दबाव के वही चीज को प्रोड्यूस कर सके। करेक्ट। इसमें सर बेसिकली हम लोग अभी जिन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, जिन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में काम कर रहे हैं और जो कंटेंट मेकर्स हैं और जो हैं उनके साथ में जो हम काम कर रहे हैं, सो उसमें क्या होता है कि कहानी तो एक अलग चीज़ है, कहानी के अपने कैरेक्टर्स हैं, कहानी का प्लॉट है, कहानी की अपनी एक स्मेल है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन एक उस कहानी का जो सिनेमैटिक विजन है वो सिनेमैटिक विजन तो डायरेक्टर को ही है। यस, ट्रू, करेक्ट। वो डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, राइट। और अगर वो चाहता है कि इस कहानी को मैं यहाँ से लेकर के ऐसा लेके जाऊंगा, तो अगर इस कहानी को अगर मैं ऐसे लेके जाऊंगा तो ये कहानी मेरे विजन में, मेरे सिनेमा में यहाँ पर जाकर के ऐसे फिट होगी, ठीक है। उसके लिए मेरे को इसकी सिर्फ सोल चाहिए, ठीक है। तो राइटर भी बहुत ज़्यादा, ऑथर भी बहुत ज़्यादा एडमेंट नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए ऑथर को एडमेंट, क्योंकि बेसिकली हम लोग एक अच्छे सिनेमा को बनाने जा रहे हैं। हम लोग जो है रीडर को किताब बेचने नहीं जा रहे हैं, राइट। कि हमको जो है हमारा ऑडियंस जो है वो रीडर नहीं है, रीडर अलग चीज़ है और एक व्यूअर अलग चीज़ है। तो वो सिनेमैटिक विजन जो है, उस सिनेमैटिक विजन में आपकी कहानी को हैम्पर नहीं होना चाहिए, आपका सोल तो नहीं मरना चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर। वो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि यार कहानी का सोल नहीं मरे। कहानी का सोल अगर मर जाएगा तो फिर क्या ही फायदा है। तो कैरेक्टर्स वही हो, कहानी का सोल वही हो, लेकिन वो सिनेमैटिक विजन हो, वो जेल अच्छा हो, वो कनेक्टिंग द डॉट्स हो। वो ऐसा नहीं हो कि अनुराग कश्यप और करण जौहर ने मिलके बॉम्बे वेलवेट बना दी, वो नहीं होना चाहिए। तो वो नहीं होना चाहिए। वो हमारा ये है कि मतलब मैच मेकिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऑथर की जो कहानी है उसको वैसा ही डायरेक्टर मिले, और डायरेक्टर भी वो उस कहानी को तभी पसंद करता है कि वो कहानी मरे नहीं, क्योंकि उसको भी कहानी से प्यार है। वो तो कहानी तो वहीं से लाया है ना, वो भी नहीं चाहेगा कि उसकी सोल मरे। तो वो क्रिएटिव लोगों के बीच की बात होती है, तो वो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि ऐसा ना हो। नाउ यू हैव द पूल ऑफ ऑथर, राइट, जो स्टोरी क्रिएट कर रहा है, राइट। सो नाउ जैसे कि आपने एकदम सही बोला कि सही डायरेक्शन के हाथ में जाएगा तो ही वो निकल के बाहर निकलेगा। करेक्ट। सो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्टर्स का जो पूल है, हाँ, इनके ऊपर आप लोगों का क्या कंट्रोल है? क्या यहाँ पे भी आप लोगों का कोई पूल टाइप के हैं कि इनकी स्टोरी लेके आप इन्हीं डायरेक्टरों के पास जाते हैं? हाँ, हम लोग क्या करते हैं ना सर कि हर डायरेक्टर हर स्टोरी पे काम नहीं करता है। यस, उनका ये रहता है कि यार मैं इस जॉनरा में काम करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक। तो वो सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट वाले डायरेक्टर्स के पास ही हम ये मेक श्योर करते हैं कि पहले उनका IMDb प्रोफाइल देखते हैं, उनका काम देखते हैं। कोई भी डायरेक्टर हो सकता है। हमारे साथ में 100+ डायरेक्टर्स ऑन बोर्डेड है हमारे। ये कैसे ऑन बोर्ड होते हैं डायरेक्टर्स? कैसे ऑन बोर्ड होते हैं डायरेक्टर्स को? हम लोग रीच आउट करते हैं, ओके, कि IMDb से, इंस्टा से, लिंक्डइन से, फेसबुक से हमारी टीम जो है वो रीच आउट करती है, और हम लोग उनको बताते हैं, हम लोग जो है कि हमारा ये बुकटेनमेंट का प्रोफाइल है, आप ये बुकटेनमेंट का प्रोफाइल देखिए, आपको यहाँ से कहानियाँ मिलेंगी। तो हमारे साथ में बहुत अच्छे डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड। अब यहाँ पे एक और सवाल आ गया मेरे हाथों हाथ जी। वो सवाल ये है कि कुछ जो एस्पायरिंग डायरेक्टर्स हैं जी, who are trying to create good movies, जी, जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा पुराने ढांचे में चला जाता हूँ जी, FTI है जी, NSD है जी, वहां से जो निकले हुए लोग होते हैं, दे आर मेजरली ऑन कंटेंट ड्रिवन और इन सब। जी, इनको कमर्शियलाइजेशन से थोड़ा सा दूर होकर ही काम करना होता है। जी। अब इनको मार्केट नहीं मिलता है, राइट, इस वजह से। राइट। सो अगर आपके पास एक तो ऑथर का ऐसे ही पूल है जो नया है, डायरेक्टर भी अगर आपने इस तरीके से चुन लिया, फिर क्या आपके लिए ज्यादा चैलेंज नहीं हो जाता है कि प्रोडक्शन हाउसेस को कैसे कन्विंस करें? बिकॉज डायरेक्टर भी आपके पास वैसे जो कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑथर भी एकदम नया। सो प्रोडक्शन हाउसेस को तो चाहिए आजकल हिट फार्मूला। उनको तो कोई मतलब नहीं है कौन क्या है, उनको तो फार्मूला है। अगर 4 गाना चल रहा है उसको तो 4 ही गाना चाहिए। भेड़ चाल तो चलता ही है हमारे कंट्री में, हर इंडस्ट्री में। करेक्ट। सो नाउ हाउ टू एड्रेस दैट? तो बेसिकली हम जो है ना प्रोडक्शन हाउस के इशारे पे काम करने वाले लोग नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, दैट शुड बी देयर, देन ओनली द एग्जिस्टेंस विल बी देयर। नहीं, हम तो कंटेंट, हम तो ये कंटेंट बना रहे हैं सर। इस प्रोडक्शन मतलब इस कंटेंट पे आपको फेथ है क्या कि आप इसमें हमारे साथ आओगे क्या? आप अगर हमारे साथ इसमें नहीं आ रहे हो तो हम ऐसे व्यक्ति के पास में जाएंगे जिसको हमारे ऊपर फेथ हो, जिसको हमारी कहानी पे, हमारे डायरेक्टर पे, हमारे ऑथर पे, हमारे प्रोजेक्ट पे फेथ हो।
मिल जाएगा हमको ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस मिल जाते हैं, हमको ऐसे Okay. लोग मिल जाते हैं। तो अभी हमारा फोकस एरिया यही है कि हम किसी के अ, अ, उसमें सुपरविजन बट में ये उसमें रखना काम भी नहीं कर रहे हैं। ये रखना भी जरूरी है थोड़ा सा, मतलब हाँ ये कोई बुराई नहीं है कमर्शियल एस्पेक्ट को। हाँ हाँ, बिल्कुल बुराई नहीं अल्टीमेटली है। तो नंबर्स मैटर करता है, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज नंबर अगर होगा तो आपके ऑथर को भी आगे काम मिलने में आसानी होगी, हाँ आपके हाँ, डायरेक्टर को भी काम मिलने की आसानी होगी, करेक्ट इवन बुक टेनमेंट विल आल्सो फ्लरिश। करेक्ट करेक्ट जैसे ही आपने 3-4 हिट कोई भी सीरीज दे दिया या कुछ भी करेक्ट दे दिया, करेक्ट पीपल विल कम टू यू कि हमें कहानी दो करेक्ट या हमें डायरेक्टर दो। करेक्ट करेक्ट। सो वो इसमें नंबर्स देखना तो बहुत जरूरी है। करेक्ट करेक्ट, देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसमें टीवीएफ सबसे बड़ा एग्जांपल है। यस, ठीक है, ट्रू ट्रू। टीवीएफ के जो अरुणाब कुमार हैं वो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में काम करते थे। ठीक है, जॉब पेरोल पे थे वो। यस यस। और फिर उन्होंने अपना टीवीएफ खुद शुरू किया। अगर वो मतलब वो उन्होंने अपना कंटेंट बनाना खुद शुरू किया, छोटा छोटा कंटेंट बनाया, शॉर्ट कंटेंट बनाया, यूट्यूब चैनल से शुरू किया, और आज की डेट में टीवीएफ स्टूडियो है, पंचायत जैसी वेब सीरीज़ बना रहा है, बड़ी बड़ी टीवीएफ जैसी वेब सीरीज़, ये एस्पिरेंट जैसी वेब सीरीज़ बना रहा है। सो उस तरीके से जो है ग्रो करना ज़रूरी है, आपको अपना खुद ही ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल से तो हम लोग पिचिंग ही कर रहे हैं ना अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस को कि जी ये, कि जी वो, ऐसा वैसा ये वो, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे टर्न अराउंड टाइम बढ़ ही रहा है हमारा। तो उस टर्न अराउंड टाइम को कम करने का यही तरीका है, स्टार्टअप लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, कि हमको पहले कंटेंट खुद बनाना पड़ेगा। अभी हमारी कंटेंट स्लेट जो है वो 5 कंटेंट, अभी हम लोग जो है 5 कंटेंट बना रहे हैं और 5 पाइपलाइन में है। ओके। एक जो है शूटिंग पे जाने वाला है फरवरी में, एक कंटेंट हमारा दिसंबर में रिलीज होने वाला है ओटीटी पे। ठीक है, तू मिल गया नाम से फिल्म आ रही है हमारी। एक घनश्याम शास्त्री नाम से हमारा जो फिल्म है, वो एक गुजराती फिल्म बन रही है, वो वही मैंने जो बोला जनवरी फरवरी में शूटिंग उसकी शुरू होने वाली है। सो उसके बारे में है। उसके अलावा 2-3 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हम लोग बना रहे हैं, वो उसके ऊपर भी काम जो है वो दिसंबर में शुरू हो जाएगा। सो उस तरीके से हम लोगों ने कंटेंट मेकिंग जो है वो शुरू कर दी है। एक 1 करोड़ बजट तक का जो बैरियर है, जो बजट है, उसमें हम लोगों ने कंटेंट मेकिंग शुरू कर दी है। ऑथर्स जो है वो उन लोगों को हम लेके आ रहे हैं, और उन लोगों के लिए हम लोग गारंटीड वे में हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है कि भाई आपका एक हम लोग मिनी सीरीज़ बनाएंगे या एक फिल्म बनाएंगे, 60 मिनट से 80 मिनट 90 मिनट की फिल्म होगी वो, और उस फिल्म में हम लोग जो है प्रोडक्शन हाउस को पहले ऑनबोर्ड करेंगे और वो अपना बजट पुल इन करके और फिर वो उस कंटेंट को बनाएगा। ये है। ओके, अब थोड़ा सा जनरल एस्पेक्ट में आ जाते हैं। श्योर सर, श्योर सर। आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है जी। बहुत माँ बाप के इच्छा होते हैं कि बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर जी, बन जाए, जी। आप उसी एक स्ट्रीम में से हैं। जी जी आपने जॉब भी की है, जी कॉर्पोरेट जॉब भी की है, जी जी सो यू हैड सीन दैट वर्ल्ड। जी और हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख के ऐसे कुछ हो जाए और फिर सेटल हो जाए। जी फिर यहाँ से शुरू होता है एकदम उल्टी तरफ की जर्नी, जी जब एंटरप्रेन्योर बनना है और जी। 100% ऑन रिस्क। जी क्या होगा पता नहीं, जी कितना रेवेन्यू जनरेट होगा पता नहीं, कब जी। से रेवेन्यू जनरेट होगा ये भी पता जी नहीं। जी जी। ये चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया आपने? बेसिकली जब मैंने पब्लिकेशन हाउस शुरू किया था, तब शुरुआत में फैमिली की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस आया था, मतलब पेरेंट्स की तरफ से। मेरी वाइफ तो मेरे साथ में थी, उन्होंने कहा कि आपको जो करना है वो करो, कोई इशू नहीं है मेरी तरफ से, आप फ्री हो। तो पहले थोड़ा चैलेंजेस आया था कि यार ये तुमने क्यों जॉब छोड़ दी, ऐसा वैसा, ये तो बहुत ही वैसा डिसीजन है। फिर जब पब्लिकेशन हाउस में रेवेन्यू आने लगा और प्रॉफिट्स वगैरह दिखने लगे, और मैंने बताया, मैंने बैलेंस शीट वगैरह दिखाई घर वालों को कि देखो इस तरह से काम हो रहा है, ये जॉब में मैं इतना कर रहा था और अब मैं इतना कर रहा हूँ, और अब पहले मैं दिल्ली में था, आपसे दूर था, अब मैं आपसे पास में हूँ, एक ये भी आप, इसको भी मैं, ये भी आप थोड़ा सा, ये भी तो एक पोर्शन है, ये आपको ये भी तो देखना चाहिए। तो फिर हाँ, उन्होंने देखा कि यार हाँ ये बात भी सही है, हम लोग भी फ्लाइट से हर महीने जाते हैं तुमसे मिलने, तो वो भी तो अपने आप में एक एक्सपेंस है। और फिर दूसरा ये था कि हम लोग चूँकि इंडियन कल्चर में हैं, तो एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं और एक ग्रोइंग कल्चर में रहना पसंद करते हैं। तो जब वो रेवेन्यू जनरेशन होने लग जाता है, जब दिखने लग जाता है कि हाँ यार ये कुछ ना कुछ कर रहा है, मेरे पास में एक टाइम पे 20 लोगों की टीम थी, तो उन लोगों ने भी देखा, पेरेंट्स ने भी देखा, फैमिली ने भी देखा कि यार ये 20 लोगों की इसकी टीम है और हमने इसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो ये खुद ही कुछ कर रहा है, तो यार ये कुछ तो कमा रहा होगा जब ही तो इन लोगों को सैलरी दे रहा है। तो वो उनको वहाँ से वो फेथ जो है वो जनरेट हो गया। और अब चूंकि 9-10 साल होने आ गए, तो शुरुआत में वो चैलेंजेस आए थे, बट अब तो दे आर प्रीटी मच श्योर कि हाँ यार ये खुद कर लेगा। Why this entertainment segment? Because आपने ये 2022 में शुरू किया, आपने बताया। जी जी
बिकॉज 2019 तक एक बहुत अच्छा बूम था जी एंटरटेनमेंट में। जी फिर आफ्टर दिस कोविड एक बहुत बड़ा स्लैग आया जी और फिर एक इजाद हुआ ओटीटी नामक जी चीज की, जी जी और फिर पूरे चीजें 80% उसमें डाइवर्ट हो गया जी ओटीटी जी में। जी सो बहुत सारे रास्ते भी खुले जी और राइटर्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत रास्ते ओपन हुए, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल इतना कंटेंट कभी नहीं बन सकता था बिल्कुल हिंदुस्तान में जितना कंटेंट आज के तारीख में बन बिल्कुल रहा है। बिल्कुल सो क्या यही अपॉर्चुनिटी था आपके लिए, या आपका एंटरटेनमेंट सेगमेंट में इस सेगमेंट में आने की कुछ और भी वजह हो सकता है? बेसिकली जब मैं पब्लिकेशन में गया था उसी समय मेरे को ये क्लियर था कि मेरे को जो है एंटरटेनमेंट में आगे चल के जाना है 2016 में। ओके, बट दैट वाज नॉट द राइट टाइमिंग वो सही नहीं थी 2016 में बुकटेनमेंट के लिए। जब मैंने टाइटल्स देखे, बुक्स देखी, वो सारी चीज़ें देखी, क्योंकि मैं तो 2007 के बाद से ही लिटरेचर से जुड़ा हुआ था। मेरी पढ़ाई लिखाई भी जो हुई है वो तो लिटरेचर तो मेरे अंदर शुरू से था। तो मेरे को उस समय से ही क्लियर था कि जाना है, लेकिन वो टाइमिंग राइट नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि यार अभी पहले लिटरेचर को एक्सप्लोर करो, कहानियों को एक्सप्लोर करो कि कहानियाँ कहाँ से आ रही हैं, कौन लोग हैं जो कहानियाँ लिख रहे हैं, हिंदी कहानी लिखने वाला कैसा है, अंग्रेज़ी कहानी लिखने वाला कैसा है, तो वो पब्लिशर्स का क्या है, लिटरेरी एजेंसीज़ का क्या है, मार्केटिंग एजेंसीज़ का क्या है, इस पूरे मार्केट को पहले समझो। तो वो मैंने पब्लिशिंग में पहले 8-9 साल उसको समझा। फिर उसके बाद हमने जब जो है बुक टू स्क्रीन एडेप्टेशन का, उस बुक टू स्क्रीन के जो इवेंट्स थे वो उस समय नहीं होते थे। बुक टू स्क्रीन के इवेंट्स ही होना 2019 से शुरू हुए। जो जियो मामी बुक टू स्क्रीन इवेंट होता है वो Yes, 2019 में पहली बार हुआ। तो वो बिल्कुल सही समय था उस समय शुरू होने का। फिर बुक टू बॉक्स ऑफिस एडेप्टेशन जो इफ़ी का हुआ वो गोवा में पहली बार मेरे ख्याल है 2020 में या ऐसा कुछ हुआ उस टाइम पे। सो उस समय तब तक जो है मतलब उतनी तैयारी मैंने कर ली थी। और एंटरटेनमेंट डोमेन का ये था कि बचपन से फिल्में ही देख रहे हैं, पढ़ाई में तो कभी अच्छे थे ही नहीं, एवरेज ही थे। तो फिल्में ही देखी है और कमर्शियल सिनेमा भी देखा है, पैरेलल सिनेमा भी देखा है, सारांश भी देखी है, गोविंदा की आंखें भी देखी है, और स्वदेश भी देखी है, आशुतोष गोवारिकर की फिल्में भी देखी है। तो फिल्में ही देख रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं और फिल्में ही देख रहे हैं, और कुछ करा ही नहीं है। और क्रिकेट जो है जो देखते हैं वो बात शौक देखते हैं, शौक की वजह से देखते हैं कि क्रिकेट देखने का शौक है, उसमें अपने को प्रोफेशनली कुछ नहीं करना है। हिंदुस्तान में दो ही तो शौक है, एक तो बॉलीवुड नहीं तो क्रिकेट, बस यही है। सो नाउ माय पोर्शन इज दैट अभी जो एंटरटेनमेंट सेगमेंट की जब हम बात करते हैं जी। या ओटीटी की जब हम बात करते हैं, ये जैसे कि हमने देखा ये प्रोडक्शन हाउस ड्रिवन है या जो भी ड्रिवन है, आने वाले 2 या 5 साल के बीच में जी बुकटेनमेंट को आप किस जगह तक लेके जाना चाहते हैं, और इसका क्या यूएसपी आप सोच के रखे हैं कि मुझे बुकटेनमेंट को इस यूएसपी में फिट करना है? 5 साल बाद सर हम अपने आप को एज अ स्टूडियो देखते हैं। स्टूडियो तो हमारा शुरू ही हो गया, फिल्में तो हमने बनानी शुरू कर दी। अब बस हमको जो है ना 0 to 1 की जो जर्नी है ऑथर को, उसको हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वही हमारा बेस है। 5 साल बाद हम ये देखते हैं कि कम से कम हमारी जो है 100 फिल्में या 100 मिनी सीरीज जो है हमारी आ चुकी है, 100-150 ऐसा कुछ नंबर हमारे पास में बड़ा नंबर हो, और हम जो है वो ऑथर्स, और वो सब कुछ बुक से ही होगा, मतलब बुक के ही वो होगा जो हम सीरीज बनाएंगे या फिल्में बनाएंगे। तो हम अपने आप को एज ए स्टूडियो ही देखते हैं, ये हमारा श्योर है। मतलब अभी तक तो हमारा फोकस यही है। फिर आज से 2.5-3 साल बाद अगर कोई मेजर शिफ्ट आता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जैसे आज से 5 साल पहले अगर हम चले जाएं 2019 में, या उसमें उस टाइम पे, या अगर हम 10 साल पहले चले जाएं, तो हमको थोड़ी पता था कि OTT आने वाला है या OTT आएगा और इस तरीके से एकदम जो थिएट्रिकल जो है उसको एकदम से एकदम वो कर देगा, ब्लास्ट कर देगा। तो अभी तो हमारा यही फोकस है। अगर कोई ऐसा मेजर शिफ्ट आता है तो वी कैन ऑल्सो पिवट इनटू समथिंग, बट वो हमको हमारे ऑथर को नहीं छोड़ना है, ये हमको ये पता है। लिटरेचर डोमेन का जो ऑथर है हमारा, उसकी कहानियों को हमको नहीं छोड़ना है, ये हमको श्योर है। नाउ ये जो एस्पायरेशन है टू हैव एटलीस्ट 100 कंटेंट थ्रू योर स्टूडियो, यस, इट आल्सो रिक्वायर्ड ए ह्यूज बजट। यस, सो इसका कमर्शियल एस्पेक्ट क्या है? हाउ यू वांट टू मेक दैट मनी सो दैट यू कैन प्रोड्यूस बाय योरसेल्फ एज अ स्टूडियो एंड यू कैन जनरेट मल्टीपल टाइम्स आउट ऑफ इट? यस, सो बेसिकली अभी तो हम एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है। Okay. और आगे चल के हमको बजट कभी ना कभी इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, या कभी ना कभी VCs आ सकते हैं। बेसिकली वी आर नॉट लुकिंग फॉर द एंजल इन्वेस्टर्स एज ऑफ नाउ,
बिकॉज हम लोग जिस तरह का फंड्स वगैरह सीख कर रहे हैं, जिस तरह का हम लोग कर रहे हैं चीज़ों में, उसमें हमको कोई ना कोई एक वीसी ही चाहिए होगा साथ में। और वीसी भी हमको जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा थोड़ा सा फिलेंथ्रोपिक माइंडसेट का वीसी हम लोग वी आर सर्चिंग फॉर। एंड हमको आगे चल के फंडिंग मिल जाएगी उस चीज़ को लेकर के, हम लोग प्रिटी श्योर हैं। और जब हम लोग बूट स्ट्रैप्ड कंपनी होकर के स्टूडियो के पाथ पे स्टार्ट कर सकते हैं, सो हमको श्योर है कि हम लोग कर लेंगे, हम लोग कमर्शियल एस्पेक्ट में उसको वर्कआउट कर लेंगे। तो एक वो इतना बिजनेस का सेंस आ चुका है कि हम लोग उसको कर लेंगे। और इसमें क्या है कि दूसरा एक चीज़ और है जो हमारे जहन में है कि जो हम लोग ओपन है जिस चीज़ के लिए, कि एक कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ जाए जो एक प्रोडक्शन हाउस हो, राइट, जो एक अच्छे लेवल का प्रोडक्शन हाउस हो, राइट, दैट कैन बी टीवीएफ आल्सो। वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करके आपको एक जगह पे पहुंचा सकते हैं। ये आपका फायदा है, नॉट फाइनेंशियली बट विद दैट देयर नॉलेज एंड आइडियाज एंड देयर एक्सपीरियंस, दैट इज फार मोर रिक्वायर्ड आज की तारीख में। राइट, दृश्यम फिल्म्स कैन आल्सो बी वन ऑफ दैट। दृश्यम फिल्म्स हमारा ऑनबोर्डेड बायर है, ऑनबोर्डेड प्रोडक्शन हाउस है। सो उस तरीके, मतलब मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ। सो ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस हो सकता है जो हमारा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हो सकता है, उनके सुपरविजन में हम लोग काम कर सकते हैं, ताकि उनका नेटवर्क का भी आपको फायदा मिले, उनके नेटवर्क का भी हमको फायदा मिले, और हम कहीं ना कहीं एक उसमें आ जाए भी, मतलब उस चैनल में आ जाए, उस सेगमेंट में आ जाए, उस पाथ पे आ जाए कि हाँ हम लोग उस साइकिल में आ जाए, उस साइकिल में हम लोग आ जाए कि वो घूमना शुरू हो जाए। बट हमको इस बात का, हमको है ना बहुत बैलेंस होके चलने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हम जो है ना ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे स्टार्टअप में कि हमारा कोर छूट जाए, राइट। क्योंकि हमारा आज कोर क्या है, आज हमारा कोर है कि हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है वो जो है ऑथर के लिए ज़्यादा नहीं हो। हमारा ये है कि 1 साल के अंदर यार उसका कंटेंट आ जाए। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है वो बोल रहा है कि यार चलो बड़े टिकट साइज के साथ काम करेंगे, 3 साल में भी एक वेब सीरीज आ रही है तो क्या दिक्कत है, प्रोजेक्ट भी तो 20 करोड़ का कर रहे हैं ना। नहीं, हमको ये नहीं करना है। हमारा प्रोजेक्ट तो 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए, हमारे ऑथर का प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए। हमको उस चीज़ के लिए काम करना है। अगर हमको उस चीज़ के लिए काम करना है तो फिर हम उसमें स्प्लिट करेंगे, दो टीम बनाएंगे, 2 डिवीजन करेंगे कि हाँ तुम्हारा साथ हमको नहीं छोड़ना है, तुमको 0 to 1 जो लेके जाना है वो तो लेके जाना है, वही हमारा कोर है। नहीं तो वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा ना। हमारे पास में आती रहती है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आती है, बात होती है एंजल इन्वेस्टर से, इंक्यूबेशन सेंटर से, बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे पास में एक ऑफ़र आया था कि इफ़ यू पिवट योर कंपनी इनटू द टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी देन वी कैन pour in ₹25 lakhs फॉर दैट, और उस तरीके से। मैंने कहा नहीं सर, हम टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी थोड़ी ना हमको बनना है। टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी तो एक अलग ही सेगमेंट है ना, वो तो अलग तरह का काम है, हमको वो थोड़ी बनना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपका 25 लाख रुपए लेकर के कि चलो फंडिंग मिल रही है, लाओ 25 लाख रुपए लो, चलो टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी। नहीं, वो नहीं है। वो अगर करना होता तो फिर तो पब्लिकेशन में कर ही रहे ना, पब्लिकेशन तो अपना चल ही रहा है, अच्छा तो एस्टेब्लिश बिजनेस है अपना, वो थोड़ी कर रहा है। हमको तो एक कुछ अच्छा काम करना है जिससे कि स्टार्टअप में रिवॉल्यूशनरी एक काम करना है अपने को। हाउ मच स्ट्रेसफुल दिस स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरल जर्नी? स्ट्रेसफुल तो है सर, स्ट्रेसफुल तो एंटरप्रेन्योरल जर्नी होती ही है। तो उस स्ट्रेस से रिलीफ तो पैसे से ही आता है, 100 बात की सीधी बात है। तो थोड़ा सा ईश्वर की दया से फाइनेंशियल बैकिंग मेरी फैमिली की थोड़ी सी अच्छी है, तो वहाँ से मेरे को वो स्ट्रेस रिलीफ मिल जाता है। थोड़ा थोड़ा मैं अपना भी बूट स्ट्रैप डालता रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, कुछ अच्छे कनेक्शंस हैं तो वो चलता रहता है। स्ट्रेसफुल तो है, लेकिन उस स्ट्रेस को वो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा वो वाला मामला है। अपने आप का जो रोल है आज की तारीख में इन Booktainment जी, कैन वी एक्सपेक्ट दैट योर रोल विल आल्सो बी चेंज्ड इन नियर फ्यूचर? कुछ और करने का भी इरादा है, कुछ और करना चाहते हैं? बिकॉज ऑलरेडी आप शायर हैं जी, ऑलरेडी आप लिख चुके हैं बहुत सारी चीजें, वो भी पब्लिश होना शायद बाकी है। जी जी जी। So, आपको हम कैसे और देख सकते हैं आने वाले फ्यूचर में? मैं सर, मेरे ऊपर तो मैं काम सर शुरू करूंगा 2027 के बाद ही। इतना प्लानिंग हो सकता है एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी? 2027 में मैं रिव्यू करूंगा अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी को। मैं 2027 में रिव्यू करूंगा कि मैं कहाँ पहुंचा, कहाँ तक आया, और अब मैं उसको आगे कहाँ लेके जा सकता हूँ, क्या है, क्या मेरे पास फंडिंग आ गई है,
क्या मैं अच्छी टीम हायर करके और अब अपने ऊपर ध्यान दे सकता हूँ, ये सब मैं कर सकता हूँ क्या, ये मैं 2027 में रिव्यू करूँगा। जैसे कि इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभिषेक बैनर्जी हैं कास्टिंग बे के फाउंडर। तो अभिषेक बैनर्जी ने पहले कास्टिंग बे को एस्टैब्लिश किया, राइट। वो शुरू से एक्टर ये बहुत एक बदनाम है, मुझे पता नहीं आप कितना एग्री करेंगे जी। ये जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स थे या जितने भी कंपनी खोले हैं उन्होंने धीरे धीरे खोल के अपने आप को एज एन एक्टर एस्टैब्लिश कर लिए हैं, लेकिन कास्टिंग बे तो नहीं बंद की ना सर। इट इज ऑलवेज ऑन देम, दे आर प्रोजेक्टिंग देमसेल्व्स रादर देन क्रिएटिंग टैलेंट। नहीं, बट मैं सर ऐसा मैं अभिषेक बैनर्जी को तो बदनाम वो नहीं करूँगा, मेरी नज़र में वो एक नेगेटिव लाइट में नहीं है। अभिषेक बैनर्जी मेरे लिए हमेशा एक पॉजिटिव लाइट में है, और क्योंकि उनकी जो कास्टिंग बे है, मतलब अगर उनको आज अगर अभिषेक बैनर्जी चाहें तो आज अभिषेक बैनर्जी कास्टिंग बे बंद कर दें, वो तो एस्टैब्लिश हो गए ना, उनको क्या जरूरत है अब कास्टिंग बे की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे ना। कास्टिंग बे तो कास्टिंग, हाँ वो इट्स हिज बेस एंड कंटिन्यूअसली वो नए लोगों को मौका दे रहे हैं। कास्टिंग बे में आज भी कास्टिंग चल रही है और कास्टिंग बे में आज भी नए लोगों को अच्छा काम मिल रहा है, बड़ा काम मिल रहा है। और मिर्ज़ापुर में अगर आप कास्टिंग एजेंसी तो कास्टिंग बे ही है मिर्ज़ापुर में, लेकिन पंकज त्रिपाठी का रोल तो बड़ा ही रोल है ना। सीजन 1 सीजन 2 में तो अभिषेक बनर्जी नहीं है, सीजन 3 में तो अभिषेक बनर्जी नहीं है, लेकिन वो तो चल रही है ना, उसमें लगातार नए लोग आ रहे हैं। हर जगह फिट नहीं कर सकते, हर जगह आप तो एक ही आदमी हो ना, आप हर जगह नहीं हो, लेकिन आप जो नए लोगों को काम दे रहे हो वो तो आप एक अच्छा काम शुरू से ही कर रहे हो। अब मेरा फाइनल लैब का 2-4 क्वेश्चन है। श्योर सर। फाइनल लैब का क्वेश्चन में ये है कि जब हम इंडस्ट्री को देखते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जी, ये हिंदुस्तान में 2-3 पार्ट में डिवाइडेड है जी। एक साउथ इंडियन पोर्शन है जो आज हमको नेशनल करने पे तुले हैं, बिकॉज साउथ इंडिया में कोई भी मूवी 100-150 करोड़ इस बनी बात है हो जाती है जी। हमारे यहाँ पे हम स्ट्रगल करते हैं बॉलीवुड में जी। सो हम लोग चाहते हैं कि उस टाइप के कंटेंट यहाँ पे आए, या कभी कभी हम लोग साउथ इंडियन मूवी को डबिंग करके भी बॉलीवुड में क्रिएट करते हैं जी जी। जो कंटेंट और जो क्रिएशन के लिए आप काम कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि साउथ इंडिया की जो इंडस्ट्री है दे आर मोर ओपन फॉर दीज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स rather than the Bollywood who always try to make certain things which are formulated, ये फॉर्मूला काम कर रहा है इसी में बनाओ, बट दे आर द पीपल हु ऑलवेज ट्राइड समथिंग न्यू, उसके बाद हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं राइट। सो डोंट यू फील दैट द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग साउथ इंडिया कैन बी ए बिगर ऑप्शनल मार्केट फॉर यू? बेसिकली हो क्या रहा है सर कि साउथ, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, और हमारे लिए वो एक बड़ी मार्केट हो सकती है, लेकिन क्या है कि चूँकि हम लोग जो बैठे हैं बुकटेनमेंट में, वो आज हम इंदौर में बैठे हुए हैं राइट, सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द इंडिया में हम लोग बैठे हुए हैं। सो हम लोगों के पास में ऐसा कोई बैरियर तो नहीं है, लैंग्वेज का कोई बैरियर बुकटेनमेंट में नहीं है। हमारे पास में बहुत सारी बंगाली स्टोरीज़ हैं। अगर मैं उसको बंगाली स्टोरीज़ को भी अगर मैं थोड़ा सा और डीप जाऊँ इसके अंदर, तो बंगाली ऑथर्स हैं बहुत सारे राइट, बट वो इंग्लिश में लिख रहे हैं, बंगाली में नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो उनका बेस है, जो कहानी जहाँ पर सेट है, कहानी जहाँ पर सेट है वो बंगाल में सेट है, ठीक है। तो वो हॉइचॉय के लिए बेस्ट है। जो OTT प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं कंटेंट उड़िया में, या जो ईस्टर्न पार्ट में जो बना रहे हैं, बांग्ला में जो बना रहे हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छा, वो एक रीजनल वो बन जाता है राइट, बैकड्रॉप उनको मिल जाता है। तो जैसे आपने साउथ की बात करी स्पेसिफिकली, सो हमारे पास में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो साउथ में ही सेट है, उसका बैकग्राउंड जो है वो साउथ में ही सेट है। तो हम उनके साथ काम कर रहे हैं, करेंगे हम लोग, जो है हैदराबाद की इंडस्ट्री में, बेंगलोर की इंडस्ट्री में हम लोग काम करेंगे। हम लोग ओपन है वहाँ के प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में काम करने के लिए। ऑब्वियसली वो लोग ज़्यादा स्टोरी ड्रिवन है, ऑब्वियसली वो लोग स्टोरी में ज़्यादा डीप डाइव करते हैं और कैरेक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो करते हैं उसके अंदर। लेकिन होता क्या है कि जैसे कुछ भी कंटेंट आता है ना, तो दरअसल क्या होता है कि पैन इंडिया जाना जो है ना, पैन इंडिया जाने के लिए जो फॉर्मूला अब जो यूज़ कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि वो उस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूँ, कोई एक कंटेंट बना साउथ में, अब आप उसको पैन इंडिया जाने के लिए आपने कोई, आप जैसे मैं एक एग्जांपल लेता, 1000 बेबीज़ राइट, जो अभी हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो रहा है, साउथ का कंटेंट है। पैन इंडिया जाने के लिए उन्होंने नीना गुप्ता जी को लिया,
लेकिन उन्होंने कहानी का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने पैन इंडिया जाने के लिए सिर्फ नीना गुप्ता जी का साथ लिया और कुछ भी साथ नहीं लिया। बाकी कहानी उनके साथ में, कोई भी एक्टर जो है नहीं है नॉर्थ का और कहीं का भी। डायरेक्टर भी जो है वो साउथ का है, कहानी साउथ की है, सब कुछ साउथ की है। वहाँ से वो लोग पैन इंडिया चले गए। अगर आपको पैन इंडिया जाना है ना, तो आपको जो है ना अपनी ऑडियंस समझनी है कि आपको, आपकी ऑडियंस को कहानी चाहिए, कहानी उसको अच्छी चाहिए, राइट। जैसे किल बनी एक फिल्म, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, वो पैन इंडिया गई, हर जगह देखी, साउथ में भी लोगों ने किल को देखा, ऐसा नहीं है। बाहुबली में भी जो कहानी है, बाहुबली में क्या था, बाहुबली पैन इंडिया फिल्म है। बाहुबली में हर चीज़ है, कहानी ही उसका जो है वो गेम है। कहानी या जो आपका जो डायरेक्शन है और जो उसका जो सिनेमैटिक विजन है, जो फील है, जो उसका ग्रैंडियरनेस है, वही जो है उसको पैन इंडिया लेकर के जा रहा है, राइट। सो पैन इंडिया जाने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक्टर की ज़रूरत है पैन इंडिया जाने के लिए। तो कहानी किल है। जैसे बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो हमारे यहाँ पर देखा जा रहा है। पैन इंडिया की तो बात छोड़ देते हैं, हम लोग ग्लोबली जाने की बात करते हैं, राइट। एक किल के साथ में एक वेब सीरीज आई जो सिक्या एंटरटेनमेंट ने बनाई, 11/11। वो एक कोरियन शो का एडेप्टेशन है, ठीक है। उस कोरियन शो के एडेप्टेशन में एक वो ग्लोबल रीच बन गई, एक इंडियन पैन रीच बन गई, ग्लोबल रीच बन गई उसकी। सो वो कहाँ से बनी किल? अगर हम 11/11 देखें तो उसमें राघव जुयाल है, सिक्या एंटरटेनमेंट है और धर्मा प्रोडक्शन उसमें स्टूडियो के रोल में है और कोई बड़ा एक्टर उसके अंदर नहीं है, राइट। सो वो कहानी के बेस पे ही तो आई है ना। हमने जो अडेप्ट किया है, हमने कहानी तो अडेप्ट की है कोरियन शो से, हमने कहानी अडेप्ट की और तो कुछ नहीं अडेप्ट किया। ये है यहाँ पे जो बैकग्राउंड की कैलकुलेशन है, हाँ। वो जहां तक मेरी समझ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने बाहुबली का एग्जांपल लिया, बाहुबली में पहली बार मिस्टर करण जौहर वाज द पार्टनर इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन, राइट। पहली बार, राइट, कि किसी साउथ इंडियन फिल्म में किसी बॉलीवुड ने पार्टनरशिप किए हैं। एंड इट वाज ऑन दैट विजन ओनली, बिकॉज राजामौली जी को पता था कि साउथ इंडिया में तो मैं मार्केट कर लूंगा, मेरा जो स्पान है, बट टू रीच 2000 करोड़ और 600 करोड़ आई नीड अदर मार्केट एज वेल, राइट। उसके लिए धर्मा प्रोडक्शन वाज द नेम। करेक्ट कि दे कैन टेक केयर अबाउट द नॉर्थ इंडिया मार्केट एंड ही कैन टेक केयर अबाउट द साउथ इंडिया मार्केट। करेक्ट। सो ये तो स्ट्रेटेजिक मूव है। करेक्ट। किल की जैसे आप बात कर रहे हैं जी, कहानी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, राइट। अब उस कहानी को पहुंचाने के लिए आपको एक नाम तो चाहिए। करेक्ट। वो नाम या तो फेस ऑफ द एक्टर हो, राइट, या द प्रोडक्शन हाउस, राइट। सो या तो एक्टर आपको उस तरीके से लेना है जो मेन स्ट्रीम का हो, जहां पे आप बता सके कि ये एक्टर से हमने करवाया ताकि पब्लिक आ जाए, बिल्कुल। या तो आप ये बैनर बताओ कि इस बैनर ने बैकअप किया है। हुक जो है, हुक की आप बात कर रहे हैं, यस, तो वही है हुक जो है ना। वो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि बाहुबली के केस में फिल्म बहुत अच्छी बनी है, वो तो है ही है, लेकिन सोना तो है, लेकिन अब सोने पे सुहागा कैसे होना है? तो वो सोने पे सुहागा होने वाली बात जो है वो करण जौहर साहब के आने से होती है, धर्मा प्रोडक्शन के आने से होती है, वहीं से वो पैन इंडिया वो बनी। और मतलब होता है ना कि मैच मेकिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रही बाहुबली के लिए, करण जौहर। सो दीज आर बेसिकली बिजनेस एंड कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। यस, मैच मेकिंग का होना, परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे इस मामले में मैं धर्मा प्रोडक्शन को बहुत हाई रेट करता हूँ मैं। वो कहीं भी नेपो किड ये वो आप वो कुछ भी होती रहे बातें उनके बारे में, लेकिन मैं धर्मा प्रोडक्शन को बहुत हाई रेट करता हूँ। इस उससे हाई रेट करता हूँ कि आप देखिए कि किस तरह से अभी आदर पूनावाला को वो लेकर के आए, राइट। और उनकी स्ट्रैटेजी देखिए कि वो उनके पास कितना विजन है, धर्मा प्रोडक्शन के पास जो विजन है वो कितना हाई विजन को वो लोग लेकर के चल रहे हैं। यही मेरा सवाल है आपके लिए भी कि जी, आने वाले जो 2 साल और 5 साल का जो मैं आपको सवाल पूछ रहा था, उसका पर्पस मेरा ये था जी कि आप जहां पे भी पहुंचना चाहते हैं, राइट, ऐसा कोई विजन है कि मैं अगर इस प्रोडक्शन हाउसेस के साथ एसोसिएट होकर कुछ रिलीज करता हूं, राइट, तो आई हैड रीच्ड एट माय लेवल, नंबर 1, और नंबर 2 आई कैन ऑनबोर्ड दिस काइंड ऑफ एक्टर और एक्ट्रेस, जी, तब जाके मैं ये समझूंगा कि हाँ मैं एक लेवल तक पहुंचा। ऐसा कोई विजन लेके चलता। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं आपको धर्मा से ही रिलेट करके बताता हूँ, वो तो अपनी चेन नहीं टूटेगी, बहुत मजा आएगा उसको। देखिए हम लोग धर्मा प्रोडक्शन से टच में हैं और हम लोग दूसरे इवेंट्स में जाते रहते हैं, हर तरह के हम लोग इवेंट्स में जाते हैं। धर्मा से है कि धर्मेटिक से है आप? धर्मा से भी टच में है और धर्मेटिक से भी हैं,
दोनों से टच में हम लोग। धर्मेटिक तो टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है और धर्मा प्रोडक्शन एक अलग है। धर्मेटिक दे आर आल्सो मेकिंग ओटीटी कंटेंट। हाँ, अब वो लोग अभी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने धर्मेटिक से बनाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने ये अभी अदर पूना वाला को जब लेके आए 1000 करोड़ की डील में 50% उन्होंने स्टेक बेचा 1000 करोड़ में। सो उन्होंने क्या किया कि सिक्या एंटरटेनमेंट के साथ में केल और 11 बनाई, ठीक है। लेकिन उन्होंने सिक्या के साथ में वो कब बनाया? की जो आप बात कर रहे हैं, इनकी बहुत मजबूत स्टोरी है, बहुत मजबूत स्टोरी है, बिल्कुल सही है। बिकॉज दैट लेडी हैज वर्कड लाइक मतलब ऑन रोड उन्होंने काम किया, एब्सोल्युटली तब जाके आज सिक्या एंटरटेनमेंट को क्रिएट कर पाए और उनको भी फोकस तब मिला है जब वो ऑस्कर तक पहुंच गए, राइट, तभी लोग उनको रिकॉग्नाइज करने लगे। एग्जैक्टली, अदरवाइज लोग उनको जानते भी नहीं थे। एग्जैक्टली पहले वही ना, शी हैज वर्कड विद अनुराग कश्यप एंड एवरीवन, एग्जैक्टली शी वाज टेकिंग द एंटायर प्रोडक्शन लाइन, राइट। सो शी इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग लेडी इन द प्रोडक्शन हाउस। बिल्कुल। आज वो इंडिया की नंबर 1 प्रोड्यूसर है, टॉप प्रोड्यूसर है गुनीत मोंगा जो है। सो जब उन्होंने ऑस्कर ले लिया, ऑस्कर जीत लिया, उसके बाद ही तो धर्मा ने उनको लिया और उनके साथ में काम किया, राइट। सो 0 to 1 एंड 1 to 10 तो आपको खुद आना है, फिर 10 to 100 के लिए आप धर्मा का साथ मांग सकते हो, मतलब जब तक वैलिडेशन होता है कोई नहीं पूछता। ऑफ कोर्स तो वहीं से हमने सीखा ना, वहां से हमने अपनी मेंटरशिप खुद ही ली। मेरा क्वेश्चन का जवाब वही हम लोग आ गए ना, हम लोग वहीं आ गए कि हम लोगों को ये समझ में आ गया कि यार पहले आपको ये कंटेंट बनाना शुरू करना पड़ेगा। आज मैं सिक्या के पास जाऊंगा, आज सिक्या से मैं बात कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो जब तक मैं खुद 0 to 1 और 1 to 10 नहीं जाऊंगा तब तक मेरे को वो रूट नहीं मिलेगी, राइट। और जब मैं सिक्या से बोलूंगा कि अब मैं ये बनाना शुरू कर दिया है मैंने, तो सिक्या कैन आउटसोर्स देयर प्रोजेक्ट्स टू अस, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। या सिक्या मेरा जो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो वो उस तरीके से ही हम लोग प्लान कर रहे हैं कि पहले हमको कंटेंट बनाना शुरू करना पड़ेगा। जब तक हम कंटेंट बनाना शुरू नहीं करेंगे ना, तब तक वो नहीं समझ में आएगा, या वो हम लोग उस रूट पे पहुंचेंगे ही नहीं। तो उस रूट पे पहुंचेंगे ही तभी जब ये रूट बनाना हमको शुरू करना पड़ेगा। हमको ये लोगों को बताना पड़ेगा, प्रोडक्शन हाउसेस को, कि हमने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। वी आर ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ स्टूडियो नाउ। अब बताओ, अब हम लोग कैसे साथ में काम शुरू कर सकते हैं। ये any dream director that you have that you want to work with, or any dream actor you have that you want to work with? ये तो आपने बहुत ही उस तरीके का सवाल पूछ लिया। अनुराग कश्यप आई वुड से। And any actor specific जिनके साथ आप काम करना चाहते हो या जिनके हिसाब से आपके पास कंटेंट हो? एक्टर में मैं कहना चाहूँगा कि एक तो पंकज त्रिपाठी हैं, उनके साथ में काम करने का बहुत मन है। उसके अलावा अविनाश तिवारी है, अभी एकदम नए उसमें अगर हम देखें तो उनके साथ काम करने का मन है। अमित सियाल है, सो यही लोग हैं। जयदीप अहलावत है, जयदीप अहलावत के साथ काम करने का बहुत ज़्यादा मन है। ये है। So it was a great discussion with you. Thank you very much for giving us your time. My pleasure. And I hope that there are a lot of insight about the industry and there are a lot of insights about how anyone can think in this larger than life way to lead. And thank you very, very much for giving us your time. I hope it's my pleasure. मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा. What is your experience with this मुझे podcast? सर बहुत मजा आया। आपने डीप डाइव किया, आपने बहुत डिटेल में बात की और बहुत कंसोलिडेटेड बात की। हम लोग जो है आउट ऑफ द वे भी आपने मुझे नहीं जाने दिया कहीं भी। तो आपने जिस पाथ पे क्वेश्चंस किए, मुझे बहुत मज़ा आया और एक एक जो आपके सवाल थे बहुत स्पेसिफिक थे, तो मुझे स्पेसिफिक जवाब देने में बहुत मज़ा आया। और इट इज़ अ वेरी हार्डकोर conversation with you, and it was a really nice experience for me to have a conversation with you. So thank you very much for your time. Thank you so much, sir. So this was the podcast with Mr. Parag Agarwal, the CEO and co-founder of Booktainment. I hope with this podcast and through this podcast you had a lot of insight about movie business, about the production company's philosophy and how the content creation market works. I would again like to request you to subscribe this channel so that you can have a lot of updates from our end, and also you can watch these kind of informative podcasts through which you can upgrade your skills as well. And you can also subscribe our other channel by the name of The Spotlight Decodes, where we decode or unfold business models. And in that case, if you are a startup and if you are thinking to have certain entrepreneurial journey, you can have a lot of updates on the business market and the gap, what is there in the market, so that you can position your company, your brand or your product. So again, thank you very much for watching the podcast and signing it off.